السلام علیکم، صبح بخیر. کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ روز کی طرح پروگرام باخبر سویرا کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی. روز کی طرح روز کی طرح مطلب ایسی باتیں آپ کریں گی تو میں اپنا نام بھول جاؤں گا. وہ کیوں؟ پہلے میں بتا دوں کیونکہ میں جانا مانا اور پہچانا تو نام ہے میرا جانا مانا جتنا جانا مانا پہچانا راجہ اشفاق کے آج ساتھ ہے یہ تو چار مورخہ 17 نومبر. جی جی ٹھیک ہے. اور منڈے اور ٹیوزڈے کے بعد آتا ہے وینسڈے. جی بالکل. تو روز کی طرح ہوتا ہے تو پیر کو بھی آپ ہوتی ہیں یہاں پر, منگل کو بھی ہوتی ہیں. سچی کیا لوگوں کو نا آپ میں میری جھلک دکھائی دینے لگ گئی ہے. ہاں لوگوں کو ایسے ہلکا ہلکا آپ بھی ساتھ رہ کے شکلیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. ساتھ چھو کر کے شکلیں ملنا شروع ہوگی. تو یہ بات ہے. بہرحال بچن جی آگے واپس اپنے شو کی جانب. سچی کیا کچھ دیر آئے درست آئے. ہاں دیکھیں ایک چیز تو کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے. دیر آئے درست آئے. دیکھیں مشترکہ اجلاس کے ساتھ لے کر آئی ہوں میں. مشترکہ اجلاس, واہ جی واہ. مشترکہ اجلاس 12 بجے ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایجنڈا بھی اس کا جاری کر دیا گیا ہے. اپوزیشن کی تیاریوں میں مکمل ہے. پی ڈی ایم کا پاور شو بھی ہو رہا ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے آج. ہو بالکل. پاور شو تو آج ہونے والا ہے کوئٹہ میں. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپ اسٹوریز میں شامل کریں, ہم تعزیت پیش کرنا چاہیں گے شیخ رشید صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں وہ قضاء الہی سے آج انتقال کر گئے ہیں. تو اللہ پاک ان کو اور ان کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ساتھ میں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ شو کا آغاز کرتے ہیں اور ٹاپ اسٹوریز پہ جلدی سے نظر ڈال لیتے ہیں. موجودہ سیاسی صورتحال میں آج ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی اہمیت بڑھ گئی. اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور ہو گئے. خاص لیگ اور این پی ایم کو حکومت نے منا لیا. نیب ترمیمی بل اور ای وی ایم پر ووٹنگ ہوگی. جیل میں بگڑنے کے بجائے تعلیم, قتل کے مقدمے کا قیدی ہائی کورٹ کا وکیل بن گیا. 8 برس پہلے گرفتاری کے بعد عدالت نے موت کی سزا سنائی. ملزم نے ہمت نہیں ہاری اور قانون کی ڈگری حاصل کر لی. اور صحت مند رہنے کے لیے لائف سٹائل بدلنا ہوگا. سردی کے موسم میں حلوے اور میوے ضرور کھائیں, لیکن صحت مند رہنے کے لیے ورزش کو نہ بھولیں بلکہ زندگی کا حصہ بنائیں. جی تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے آج کی سب سے بڑی اہم خبر سے, اور یہ کہ آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کال کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے کافی زیادہ پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ سچی ہم دیکھ رہے تھے نمبر گیم سمہاؤ پوری نہیں ہو رہی تھی. اپوزیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہمیں پر امید نظر آ رہی تھی اپنے نمبر گیمز کو لے کے. اور سمہاؤ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو کہ کئی دنوں پہلے کال کیا جانا تھا وہ فائنلی آج کال کیا جا رہا ہے, کیونکہ حکومت نے منا لیا ہے اپنے اتحادیوں کو جس میں مسلم وقاف بھی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان بھی ہے. بالکل جی, منا دیا ہے. ای وی ایم کے معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان کے خدشات تحفظات موجود تھے, لیکن انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے. کس نوعیت کی وہ یقین دہانی ہے کہ وہ تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قافلی ان کے بھی خاصے کنسرنز تھے مختلف چیزوں کو لے کر جس میں ای وی ایم بھی شامل ہے. تو اب وہ بھی اس معاملے پر تیار ہو گئے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن کیا باتیں ہوئیں؟ بعض اوقات وزیر اعظم صاحب جس طرح سے ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ ان کی نگاہ کرم ہی کافی ہوتی ہے کہ وہ ملاقات کریں, بات سنیں, کیونکہ وہ حکومت کے سربراہ ہیں. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایک پینڈورا لیکس کا سلسلہ شروع ہوا تھا, آپ کے علم میں ہے, تو اس میں مونی سلائی صاحب کا بھی نام آیا تھا. ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بھی بنائی گئی تھی ہائی لیول کی. اس کا کچھ ابھی تک ہوا نہیں ہے؟ اس کا واقعی ابھی تک پتہ نہیں ہوا, لیکن یہ جو ابھی آپ نے پینڈورا لیک سے ایک دم سے ذکر چھیڑ دیا جو دماغ میں بھی میرے چیز نہیں تھی, خیر وہ آ گئی. لیکن خیر ہم نے دیکھ رہے کیونکہ جو حکومت کے اہم اتحادی ہیں وہ کہتی ہے کہ جی ہمارے بہت سارے ایسے مطالبات ہیں جو کہ ہم نے کب سے جس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور حکومت نے وہ پورے بھی کرنے تھے لیکن وہ نہیں پورے کیے گئے. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی میٹنگز ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں یہ کافی اچھے مثبت نوٹ پہ ختم ہوئی, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اتحادی مان بھی گئے ہیں. اور ایم کیو ایم پاکستان کے سے جو وفاقی وزیر ہیں امین الحق وہ کہتے ہیں کہ جی وفاقی حکومت کے ساتھ حیدرآباد میں یونیورسٹی کے قیام اور مردم شماری پر بھی بل لائے گی. دوسری جانب وفاق کی وزیر فواد چودھری صاحب نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو عمران خان کا ذاتی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو قومی ایجنڈا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ الیکٹورل ریفارمز ہیں, یہ کوئی ہمارا عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے.
یہ قومی ایجنڈا ہے. جب اصلاحات کی طرف آپ جا رہے ہیں تو اس وقت اپوزیشن شور مچا رہی ہے کہ اصلاحات نہیں ہونی چاہیے. کل کے اجلاس میں اپوزیشن ان تمام ترامیم کے اوپر کھلے دل سے غور کرے. جہاں پہ ان کو ترامیم چاہیے وہ ترامیم لے کے آئیں, ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تمام اتحادیوں نے اس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اچھا جی, تو دوسری جانب اپوزیشن کی حکمت عملی بھی تیار ہے. شہری رحمان نے نیب آرڈیننس مسترد کرانے کے لیے سیکرٹری سینٹ کے پاس قرارداد جمع کرائی ہے جس میں 51 سینیٹرز کے دستخط ہیں. قرارداد ہے جو آج ہاؤس میں سبمٹ کی گئی ہے, اس کے پیپرز اور سگنیچرز ہم 51 جمع کروا رہے ہیں ہاؤس آف 99 میں. یہ اکثریت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ یہ جو نیب آرڈیننسز پیش ہوئے ہیں, پلیس ہوئے ہیں اسمبلیوں میں, ان کو مسترد کریں. جی, تو اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اور تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام 11th آور کے اینکر پرسن وسیم بدامی. السلام علیکم وسیم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. وسیم, بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس ہونا تھا جو کہ نمبر گیم سمہا پوری نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں کیا گیا, لیکن آج فائنلی اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے اتحادی بھی مان گئے ہیں جو بہت عرصے سے کچھ اپنے مطالبات منوانے کی کوشش بھی کر رہے تھے. تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیسے مانے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آگے بھی جا کے یہ جو یقین دہانیاں ان کو کرائی ہوں گی ان کے کام آ جائیں گی؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویری گڈ مارننگ. اب دیکھیں, یہ جو اتحادی ہے جس میں ہم بالعموم سارے اور بالخصوص ہم جو دو بڑے قاف لیگ اور ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں یہ تجزیہ کرنا تو مشکل نہیں ہے نا کہ اگر یہ علامات واضح ہوں, اگر حکم صادر ہو جائے کہ ساتھ نہیں دینا تو پھر انہوں نے ساتھ نہیں دینا. ہاں, یہ ضرور ہے کہ کبھی ماحول دیکھ کر ایک اچھا موقع ہوتا ہے آپ کے پاس اپنی جائز یا ناجائز باتیں منوانے کا. یعنی ایم کیو ایم کا تو ویسے بھی ہم پاس جانتے ہیں کہ پیپلز, یعنی میں آپ کو بڑا چیلنج سے بات کر سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم سے متعلق ایم کیو ایم کے بھی شاید 2-3 ہی لوگ ہوں گے جو کہ جن کو یعنی ازبر ہو, جن کو یاد ہو کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں وہ کتنی مرتبہ حکومت سے باہر ہیں اور کتنی مرتبہ حکومت میں اندر گئے. بلکہ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب ایم کیو ایم حکومت سے باہر آتی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں تو اس پر تجزیہ کم ہوتا تھا کہ کیوں باہر آئی ہے, اس پر تجزیہ زیادہ ہوتا تھا کہ کتنے دن میں واپس آئے گی. تو ان کا حکومت کو آنکھیں دکھانا ہمیشہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ کوئی ان کو آنکھ مار رہا ہے اس لیے کسی کو آنکھ دکھا رہے ہیں, بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یار بھی ماحول اچھا ہے تو ابھی ذرا اپنی بات منوا لو, ابھی اگلی پارٹی پریشر میں ہے. تو وہ انہوں نے کیا اور اپنی کچھ باتیں منوائی. کل وہ حیدرآباد کی یونیورسٹی کا ایک بل بھی آ رہا ہے اور وہ ساری چیزیں اور اندر خانے میں کچھ باتیں, اور تو یہ ہے ساری صورتحال, اس لیے ہونا تھا. اب یہ بتائیے گا کہ کیا اپوزیشن اس سلسلے میں آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی ان کے پاس چانس ہے کہ وہ کوئی اپ سیٹ کر سکیں, یا پھر نمبر گیم پورا ہے گورنمنٹ کا آپ کے خیال میں؟ اب نہیں, اب سے کچھ دیر بعد آپ کا یہ پرائم ختم ہونے کے 1 گھنٹے بعد جو پارلیمنٹ کا بڑا اہم اجلاس, علامت اس کی بڑی حیثیت ہوگی جب شروع ہوگا. تو مجھے تو بہت حیرت ہوگی اگر آج اپوزیشن کوئی اپسیٹ کر دے. یعنی میرے خیال میں بہت ہی بڑی خبر ہوگی اگر ایسا کچھ ہو جائے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ اپنے نمبرز پورے کرے گی, اور اپوزیشن, مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اپوزیشن کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ گورنمنٹ اپنے نمبرز پورے کر لے گی, اور جو بل وہ چاہ رہی ہے جس میں سر فہرست جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے رائٹ سے متعلق ہے. اس کے علاوہ کلبھوشن سے متعلق انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو ایک فیصلہ ہے اس بارے میں بھی ہے, حیدرآباد کی یونیورسٹی سے متعلق بھی ہے, اسلام آباد کے دیہی علاقے سے متعلق بھی ہے, ایک ریپ سے متعلق بھی ہے, خواتین کے حقوق سے متعلق بھی ہے. لیکن ظاہر نمایاں وہی دو ہیں, تو یہ سب منظور ہوں گے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں. صحیح. اچھا وسیم, کیونکہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 21 بل کے قریب جو ہے نا یہ بل یہ آج حکومت کی جانب سے پیش کیے جائیں گے آج کے اس مشترکہ اجلاس میں. اچھا, کیونکہ اس مشترکہ اجلاس میں اٹینڈنس سب کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, چاہے وہ حکومتی نمائندے ان کے اتحادی ہوں یا پھر اپوزیشن جماعت سے تعلق رکھنے والے ارکان ہیں. اب مولانا فضل الرحمان اس موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کو کالز آ رہی ہیں کہ وہ آج کے اجلاس میں نہ جائیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کیا کہوں, یعنی لیکن ظاہر ہے اب ایگزیکٹلی اس طریقے سے کس کو فون آیا نہیں آیا وہ تو جس کو آیا وہ بتا سکتا ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب چیزوں کو میک شور کرنا ہوتا ہے کہ چیزیں صحیح انداز میں چلیں اور کچھ ایسا نہ ہو کہ جس سے گورنمنٹ آف دا ڈے کو کوئی تکلیف نہ ہو, یا پھر یعنی جس میں کسی ایک کو فائدہ ہے کسی ایک کو فائدہ نہ پہنچانا مقصود ہو, تو اس طرز کے فارمولے کا آزمانا کوئی نئی بات تو ہے نہیں. تو اس پرٹیکولر انسٹنس میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا
یہ ایک بڑا معصومانہ سوال ہے، لیکن اس میں زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اگر ایسا یہ معاملات چل بھی رہے ہیں اس طریقے سے۔ اچھا، اس سے پہلے ایم کیو ایم اور قاف لیگ کے جس طرز عمل کی آپ نے بات کی کہ روٹنا منانا، پھر مان جانا، پھر بار بار مان جانا، پھر کچھ ہی عرصے بعد مان جانا، تو یہ جو عمل کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن اس عمل سے ان کی مستقبل کی سیاست پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اثرات مرتب ہوں گے؟ کوئی خاص نہیں، وہ اس لیے کہ ان کے ووٹرز بھی، سپورٹرز بھی، ان کی پارٹی کے لوگ بھی وہ سب جانتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہی چلتے ہیں، اور اس میں بلکہ کافی لوگ تو اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیے، اب الیکشن قریب ہے، ایم کیو ایم کو ویسے بھی الیکشن سے 6 8 10 مہینے پہلے پی ٹی آئی سے الگ ہونا ہے، کم ووٹ میں۔ یعنی اگر معاملہ الٹ ہو، ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی کیا ان کو کوئی اشارہ تو نہیں کر رہا کہ آپ ہٹ جائیں، تو ظاہر کوئی اشارہ کرے گا تو وہ یقیناً ہٹ جائیں گے، لیکن اگر معاملہ الٹ بھی ہو کہ کوئی حکم صادر کر رہا ہو کہ آپ نہ ہٹیں، تو بھی ایم کیو ایم کی خواہش ہوگی کہ ایم کیو ایم کہے گی کہ سر ہم حکومت گرائیں گے نہیں، ہم تحریک عدم اعتماد میں حکومت کے خلاف نہیں جائیں گے جس سے حکومت گر جائے، ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن خدا نہ ہمیں منسٹری سے اور علامتی طور پہ گورنمنٹ سے الگ ہونے دیں، ٹریجری بینچ سے دور بیٹھنے دیں۔ وہ اس لیے کہ کل جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو الیکشن میں ہم کیا بولیں گے؟ کیا ہم یہ بولیں گے 5 سال ہمارے ووٹرز 5 سال تحریک انصاف نے زبردست کام کیا ہے؟ تو اگر ہم یہ بولیں گے تو پھر ہمارا ووٹر بولے گا کہ ہم تحریک انصاف کو ووٹ دے دیتے ہیں پھر، اچھا ویسے بھی تحریک انصاف نے اچھا کام نہیں کیا، اور جب آپ یہ کہیں گے کہ تحریک انصاف نے بہت برا کام کیا ہے تو ووٹر کہے گا بھائی جان آپ تو ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے، تو آپ تو ان کے حصہ دار ہو، تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو یہ سیاسی مجبوری بھی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی، کہ بھائی یہ بھی الگ ہو جائیں تاکہ الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف فل کیمپین کر سکیں، اور تحریک اور قاف لیگ کے اپنے معاملات ہیں، تو یہ آنا جانا لگا رہتا ہے، اور اس سے ان کی سیاست پہ کوئی ناقابل تلافی اثر اس لیے نہیں پڑتا کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ وسیم ادار ساتھ موجود تھے، اور وسیم نے خیر یہ بات کہہ دی ہے جاتے جاتے کہ ہم دیکھیں گے کہ الیکشن سے پہلے یہ جو بڑی جماعتیں اسپیسیفکلی غیر ملکی پاکستان ہے، یہ 6-7 مہینے پہلے جو ہیں یہ ضرور حکومت سے جو ہیں علیحدہ ہوں نہیں، گی۔ یہ مینڈیٹری ہے نا، مینڈیٹری، کیونکہ اب پرفارمنس کی بات بھی کریں، خیر جو وعدوں کی بات بھی کریں ستی، تو بہت سارے وعدے جو کہ ان پارٹیز کے ساتھ کیے گئے تھے، جس میں حیدرآباد یونیورسٹی کا بل بہت پہلے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے، جس پہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی شکایت کی جا رہی تھی کہ جی ٹائم نہیں مل رہا، پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور بہت ساری چیزیں نہیں کی جا رہی، مہنگائی، بے روزگاری، بہت سے ایسے ایشوز ہیں، انفراسٹرکچر، جس پہ ان کے اپنے ووٹرز ان سے بہت ناراض سے ہیں کہ بھئی کرنا issues کیا ہے۔ چلے جی، اب ستی ایک اچھی خبر جو ہے وہ میں چاہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ نہیں، وہ خبر جو ہے وہ ستی آپ کے ساتھ شیئر کرے، کیونکہ سم ہاؤ میں تھوڑی بہت کرکٹ سے دل برداشتہ ہوں، گو کہ ہماری ٹیم بہت اچھا کھیلی۔ اور مجھے بتائیں ستی، یہ جو ہمارا ورلڈ کپ ہوا تھا، ہمارا، میں خیر کیا بولوں، یہ جو T20 کا ورلڈ کپ، یہ کتنا بورنگ ورلڈ کپ تھا، یہ مجھے ہی لگا ہے، کیوں؟ مطلب کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، مجھے تو ایسا لگ رہا مطلب تھا۔ ایسا کیوں لگا آپ کو؟ مجھے اتنا بتائیں، کیونکہ میں فائنل کی بات کر رہی ہوں ستی، میرے کیا چاہ رہی تھی آپ؟ کیا کیونکہ دیکھیں نیوزی لینڈ تھا اور آسٹریلیا تھا، مزہ تو تب آتا جب پاکستان ہوتا، مجھے لگتا ہے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار پاکستان کو ہونا چاہیے تھا یہاں، تو ایسے میں آسٹریلیا مزہ آتا کو ہم ہمیں۔ سے ہار جانا چاہیے تھا اصولاً، لیکن جو بات یہ ہے آسٹریلیا نے کیا نیوزی کہ لینڈ جو کے ساتھ، اگر ہمارے فیکٹر آف دا ٹورنامنٹ، بہت سے ایوارڈز ملے، پلیئر آف دا ٹورنامنٹ، پلیئر آف دا میچ، بلا 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 بلا، ٹیم آف دا ٹورنامنٹ، ایک ہونا چاہیے تھا کہ فیکٹر آف دا ٹورنامنٹ، وہ فیکٹر تھا ٹاس۔ اس ٹاس نے سب کو جتایا ہروایا ہے، یعنی کہ شروع سے لے کے اینڈ تک پتہ ہی ہوتا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ رائٹ، لیکن میرے خیال سے جس طرح سے وہ جیتے، اگر پاکستان ہوتے تو ہم ان کو جیتنے کا موقع نہیں دیتے، لیکن مجھے اتنا پتا چل گیا ہے کہ آسٹریلیا والوں نے کرونا سے جان کیسے چھڑائی، جوتوں میں جو مشروبات ڈال کے پیے، اٹ واز ویری ڈسکسٹنگ ٹو سی۔ خیر جی، اچھی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ 2025 میں جو چیمپئنز ٹرافی کی تقریب ہونے جا رہی ہے، اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہو گیا ہے پاکستان کو، اور پاکستان اپنے اعزاز کا دفاع اپنی ہی سرزمین سے کرنے جا رہا ہے۔ سو کیا بات ہے، دیٹ از اے گریٹ نیوز، اور پاکستان 29 سال بعد کسی بھی آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی کرے گا۔ اس سے پہلے 1996 میں ورلڈ کپ کا بھارت اور سری لنکا کے ساتھ ایک مشترکہ میزبانی پاکستان کی جانب سے کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اگلے 8 میگا ایونٹس کے میزبانوں کا اعلان بھی کیا ہے۔ 2024 کا T20 ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں کھیلا جائے گا۔ واو جی، پی سی بی چیئرمین ربیز راجہ کہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے دوران بہترین انتظامات سے دنیا کو بتائیں گے کہ ہم کتنے اچھے میزبان ہیں۔ بالکل جی، اور اسی والے سے بات کریں گے تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرکٹ میں ان کے شاندار اور تباہ کن تجزیے جو ہیں ان سے کون واقف نہیں ہے۔ السلام علیکم تنویر، اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ کیا لگ رہا ہے تنویر؟ وعلیکم السلام، صبح جگا دیا آپ۔ بالکل جی، خبر اتنی اچھی تھی، جاگنا بنتا ہی تھا۔ جاگو صبح ہوئی سورج کا نہیں وہ سو جائیں گے، ایسا گانا نہیں گانا۔ تنویر مجھے یہ بتائیں
کہ کتنی بڑی خبر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں جو ہمارے کرکٹرز ہیں ان کے کانفیڈنس میں اور اوور آل ایز اے نیشن ہمارے لیے کتنی اچھی خبر ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ 2025 میں چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو میرے خیال ہے پورے پاکستان کے لیے اور کرکٹ بورڈ کے لیے، ہمارے عوام کے لیے، جو بھی کرکٹ پسند کرتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے، اس کے لیے بہت ہی زبردست یہ خبر ہے، کیونکہ ایک ایونٹ ہونا کسی ملک کے اندر یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے اور بہت خوشی کی بات بھی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین انہوں نے بولا کہ ہم بتائیں گے کہ ہم لوگ کتنے زبردست میزبان ہیں، اور واقعی جب کنٹریز آتی ہیں آپ کے ملک میں کھیلنے تو کچھ پلیئرز کو، کچھ کنٹریز کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس ملک میں کس طریقے کی میزبانی ہوگی، اور بہت سے پلیئرز آئیں گے، فرسٹ ٹائم بھی آئیں گے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کتنا زبردست ملک ہے اور مطلب ہر چیز زبردست ہے یہاں پہ. تو میرے خیال ہے پاکستان کی کرکٹ میں اس چیز کا بہت فائدہ ہے. اس کے بعد ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے ملک میں اتنی بڑی کرکٹ آتی ہے، ایونٹ ہوتے، تو آپ کے کرکٹرز بھی بنتے ہیں، آپ کو کرکٹ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے اس سے اچھی اور خوشی کی بات کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے لیے ویسے اتنے بڑے چیلنجز تھے، اس کے باوجود بھی اتنی ایفرٹ کی کرکٹ بورڈ نے. تو یہ جب چیزیں ملک میں آتی ہیں تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور ہو نہیں سکتی. جی، اور ایک اور خوشی کی بات بھی ہے تنویر، کہ ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 4 سال بعد یہ ایونٹ ہونا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب درمیان میں 21 میں نہیں ہوا، 25 میں ہو رہا ہے، تو ہم 2017 سے لے کے 25 تک یہ ٹرافی اپنے پاس ہی رکھیں گے. جی بالکل، اور 2017 میں جس طریقے سے ہماری ٹیم نے یہ چیمپئن ٹرافی جیتی، اور اب جو ٹورنامنٹ ہے جو نیکسٹ ہے وہ پاکستان میں ہوا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے ہر کسی کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور آپ ان چیزوں سے پتہ ہے آپ کی جو کرکٹ ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے، آپ کے سسٹم کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے، آپ فائنینشلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کے ملک میں اتنے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں پھر ٹیمز بھی آپ کے پاس آتی ہیں، تو اس سے اچھی بات میرے خیال ہے کوئی ہو نہیں سکتی. صحیح. اچھا، اور ساتھ میں بس تنویر جاتے جاتے بتائے گا، کیونکہ ابھی پاکستانی ٹیم جو ہے اس بنگلہ دیش میں موجود ہے، سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پورا کا پورا ٹورنامنٹ ہوا ہے، ہم نے بہت کمال پرفارمنسز دی، ہم مسلسل 5 میچز جیتے گئے، پھر سیمی فائنل میں آف کورس ہماری لک نے اتنا کام نہیں کیا، اور آف کورس سامنے والی ٹیم بھی بہت اچھا کھیل رہی تھی. تو ایسی کون سی غلطیاں آپ کو لگتا ہے جو کہ ہوئی ہیں جو کہ آگے ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلی بات جو ستی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ٹاس تو ایسا تھا، بس جس ٹیم نے ٹاس جیتا وہ میچ جیت گیا. یہ تو پورے ٹورنامنٹ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور وہ ٹیم جیتی بھی جس نے ٹاس جیتا ہے. دوسری بات کی کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہم نے بار بار یہ ٹرانسمیشن میں کہا کہ آپ حسن علی اور شاہین افریدی کو آپ ریسٹ کروائیں نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کے میچز میں، کیونکہ شاہین ایسے لگتا ہے ٹائرڈ بہت ہے، حسن علی بالکل فارم میں نہیں تھے وہ، تو ان کو ریسٹ کروانا چاہیے تھا. خیر کپتان نے ٹرسٹ کی، انہوں نے نہیں کھیلنا چاہیے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ آپ اگر فوری طور پر عمل کریں تو آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اوور آل پاکستان ٹیم بہت ایکسٹراڈنری کرکٹ کھیلی ہے، بہت اچھی کرکٹ کھیلی. آپ نے اس دفعہ دیکھا بھی کہ جو سوشل میڈیا میں لوگوں نے بیک کیا ہے پاکستان کو، میرا خیال ہے پہلے کبھی بھی اتنا زیادہ بیک نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان نے کرکٹ ہی بہت اچھی کھیلی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. تنویر احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور صبح ہم گفتگو رہے تھے ایک اچھی خبر کے حوالے سے، جو کہ انشاءاللہ ہمیں بڑے عرصے بعد نصیب ہوئی ہے. مطلب کہ پاکستان میں سوچے نا چیمپئنز ٹرافی جب یہاں پر ہوگی کتنا مزہ آئے گا، بڑی بڑی ٹیمیں آئیں گی. لیکن 2025 میں اگر زندگی رہی تو ہم اس کے حوالے سے ہم بھی کچھ کوریج کریں گے. نہیں، آپ کی دعائیں چلتی رہیں اسی طریقے سے، شاد رہی، آباد رہی، تو خود کو بھی لگتی رہیں گی انشاءاللہ. ہاں، باقی کہتے ہیں دوسروں کو دعا دینا تو دعا کے خود کو بھی لگتی ہے، تو لیکن دوسروں کو دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہے. بالکل. تو جناب بات یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ ایسا ہوگا. تو اب جناب کیا ہم بات کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا ستی، پاکستان کی نا کچھ چیزیں بڑی مشہور ہیں بیرونی ممالک میں، وہ یہ کہ کچھ ہمارا کلچر ایک تو بڑا وسیع ہے. اجرک کی ہم بات کریں، اجرک بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے، اور ٹرک آرٹ جو پاکستان کا ہے
वो बहुत ही हिट है और दुनिया जहान में जो ट्रक आर्ट की जो पेंटिंग्स की जाती है पाकिस्तान में हमने देखा है कि जी लंदन में भी एक बार, ऑस्ट्रेलिया में इनफैक्ट हमने देखा कि जी वहाँ पे भी जो पाकिस्तानी ट्रक आर्ट है उसके किस तरीके से वहाँ पे ट्रक्स घूम रहे होते हैं, बसेस चल रही होती हैं, ट्रिब्यूट पेश अच्छा किया जा बड़ी रहा बात है। होता अच्छा इसको ट्रक आर्ट और उसके अलावा बसेस पे पाकिस्तान में जाके देखें और एक अरसे से और बल्कि बड़े ज़बरदस्त उसके अंदर सिग्नेचर्स होते हैं, वो जो बॉडी मेकर्स होते हैं गाड़ियों की, बिल्कुल। फिर वो आर्टिस्ट और ख़ास तौर पर छोटी छोटी सुजुकियाँ अगर रावलपिंडी वगैरह में जाके देखें मुख्तलिफ इलाकों में, वो भी और उसमें जो शायरी जी, लिखी हुई होती शायरी। है। अच्छा हम फन की कदर करते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो जो फन पारा जिसने बनाया है उसके पीछे आर्टिस्ट कौन है और आर्टिस्ट की अप्रोच क्या है। तो इसी वाले से चिन्योट में बनी ट्रक आर्टिस्ट की मार्केट से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा अमीर उमर चमन। क्या बात है जी भाई, अच्छे रिपोर्टर ही नहीं है हमारे तो अमीर उमर चमन जो है बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी निकले और किस तरीके से उन्होंने ट्रक को अपना कैनवस गाड़ियाँ खरीद के इनसे पेंट करवाते हैं, इन पे ट्रक आर्ट करवाते हैं। अच्छा अब तो लोग उसके नमूने जो है वो अपने घरों में भी करते हैं। आप गाड़ी खरीद के अमीर उमर चमन से वो कराएंगे? मैंने ऐसी गाड़ियाँ देखी हैं जिन्होंने लोगों ने की हुई है कि मतलब नए मॉडल की गाड़ियां और उसके ऊपर पूरे जो है वो यही शशके जो कि इस तरीके से पास पैसा आपने देखा ना पिछले दिनों गाड़ियों की उसके लिए एक ज़ौक भी खास किस्म का होना चाहिए। हाँ ज़ौक भी, उसके लिए आप गाड़ी एक्स्ट्रा खरीदिए, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपके ओह ये मैं ज़रा 40-45 लाख की तो एक नई गाड़ी खरीदती थी, उसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रक आर्ट कराना था। लेकिन जो ट्रक्स अभी आप देख रहे थे, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ये रोज़ की बुनियाद पे 12 से 15 घंटे जो है ना ये ड्राइव करते हैं। इतना ये वक्त अपने घर में नहीं बिता पाते जितना वो इस ट्रक में बिताते हैं, तो इसलिए उस ट्रक को इतना ही खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं जितनी सबकी कोशिश होती है कि बिल्कुल जी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप हाईवे पे ट्रैवल भी कर रहे हो और सामने से कोई ट्रक भी आ रहा हो तो आपको दूर से ही एक अलग ही नजारा चमकता हुआ और ये और जिस पे शेर लिखा होता है वो तो मैं ड्राइवर की जिंदगी भी अजब खेल है, दिल में उतर मौत जाता से बच गया तो सामने सेंट्रल जेल है। ये इस तरह के बहुत से दूर, अरे वो ये तो मैंने शरीफाना मासूमाना और एक थोड़ा सा दुखी शेर सुना है। सबसे रोमानवी शायरी भी होती है बड़ी अच्छी, फासला रखे वरना प्यार हो जाए। लेकिन बड़े मजे मजे की शायरी के साथ हम डिस्कस करेंगे। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने जेल की कालकोठरी में रह के भी तालीम जो है इसका दामन नहीं छोड़ा, तालीम हासिल की। और इनके बारे में आपको बताते चलें कि कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत के कैदी थे और 8 साल इन्होंने कैद में भी गुजारे। बिल्कुल जी, 2010 में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, 12 में गिरफ्तार किया गया, मौत से सज़ा भी हुई अदालत से और उनके वालिद, चाचा और गार्ड को भी उनके साथ ही गिरफ्तार किया गया था। लेकिन राय अयाज ने हिम्मत नहीं हारी और सेंट्रल जेल गुजरांवाला में क़ैद के दौरान ही पहले ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स तक तालीम मुकम्मल की और रिहाई के बाद वकालत शुरू कर दी। तो इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। बड़ी इंस्पिरेशनल एक स्टोरी है क्योंकि नॉर्मली इस तरह से होता है, आपकी गिरफ्तारी अमल में आए, आप इस तरह के माहौल में रहें, तो हम ये देखते हैं अमूमन अपने टीवी ड्रामों में भी, फिल्म वगैरह में भी कि इंसान बजाय अच्छी राह पे जाने के वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो राय मोहम्मद अयाज साहब हमें ज्वाइन करें। शुक्रिया राय मोहम्मद अयाज, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। माशाल्लाह से अब तो आप वकील बन गए हैं और ये पहले ये बताइएगा, बड़ी कामयाबी की बात है, लेकिन ये जो मुकदमा था आपके ऊपर हुआ था, कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था, इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये हुआ क्या था वाकया? बेसिकली 2010 में मेरे पे ये मर्डर का केस एक फेक रजिस्टर्ड हुआ जिसको मैंने देखा भी नहीं था, ठीक है। तो ये एक डिस्प्यूट था मेरे वालिद साहब का उस केस में, फिर उन्होंने मुझे भी इम्प्लिकेट कर दिया और इस वजह से मैं इस केस में इन्वॉल्व हो गया। सही, ठीक है। तो फिर ये केस कितने अरसे पहले हुआ था, कितने, ये तुमने बताया कि 8 साल आप कैद में भी रहे, बाहर आप कब आए? और एक जो तमाम तालीम है आपने ये कैद में ही हासिल की या बाहर निकलने के बाद की? जी इनफैक्ट हुआ ये कि मैं जब मेरे पे FIR हुई तो तब मैंने ना अपने FA के एग्ज़ाम्स दिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अरेस्ट हो गया इस केस में और आलमोस्ट कोई 8 साल जेल के अरसे के दौरान मैंने अपनी सारी तालीम को कंटिन्यू रखा। ग्रेजुएशन, मास्टर्स और दूसरी डिग्रियां मैंने जेल में रह के हासिल की थी। सही। तो अच्छा ये बताएं कि जब आपने ये अपनी 8 साल मुकम्मल कर लिए तो फिर आपको वहाँ से अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था अयाज? जी बेसिकली सेशन कोर्ट्स जो है, ट्रायल कोर्ट जिसको कहते हैं, उसने मुझे सजाए मौत की सज़ा दी थी। फिर उसके बाद एपलेंट कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसमें डबल बेंच ने मुझे एक्विटल किया, बरी किया। उन्होंने कहा कि चार्ज इस बंदे पे प्रूव नहीं होता, ठीक है,
इस वजह से हम इसको बरी कर रहे हैं। लेकिन अलमिया हमारे सिस्टम का ये है कि 20-20 साल बाद भी बंदे बेगुनाह साबित होते हैं। ऐसा ही है क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन के बड़े इश्यूज। अच्छा, आपको ख्याल कैसे आया कि भाई मैं इस सिस्टम पे भरोसा नहीं कर सकता, मुझे खुद वकील बनना चाहिए, और ख़ास तौर पर जेल के माहौल में जहाँ पर जुर्म की तरफ इंसान ज़्यादा राग़िब होता है, नॉर्मली जो हमने देखा है, आप इस तरफ कैसे राग़िब हुए? मैं आपको बताता हूँ कि 95% लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वॉल्व किए होते हैं या वो इनोसेंट होते हैं, ठीक है। जस्ट फाइल को स्ट्रेंथन करने के लिए या केस को स्ट्रेंथन करने के लिए उन बंदों को केस में इम्प्लिकेट कर देती है प्रोसिक्यूशन। तो जब ये सिचुएशन को मैंने देखा और लूप होल्स देखे अपनी लॉ की फेटर्निटी में, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक अच्छा लॉयर बना जाए कि जो अच्छे तरीके से केस को डिफेंस या प्रोसिक्यूट करे। अलमिया ये है कि एलएलबी करने के बाद लोगों को प्रैक्टिस नहीं आती, उनको केस प्लीड करने नहीं आते। लेकिन वो आप नीम हकीम खतरा व बाले जान वाला सीन होता है। जब एक वकील को अच्छे तरीके से केस कंटेस्ट करना नहीं आता तो फिर अल्टीमेटली उसका नुकसान उसके क्लाइंट को उठाना पड़ता है। ये बताएं, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो आप जेल में रहे करनी चाहिए। जब आप जेल में रहे और इतना अरसा आपने गुजारा और आप कह रहे हैं कि रॉन्गफुली आपको रखा गया था वहां पर, तो आप जाहिर है कि उन कैदियों को जो इसी तरह के हालात से गुजरते हैं उनके मसाइल को समझने में आपको ज्यादा आसानी होती होगी कि भाई उसे क्या तकलीफ हो रही है, वो मैं उससे गुजर चुका हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा, तो ये कहेगा इसमें कोई शक नहीं कि अयाज इसमें से, क्योंकि जब आप 8 साल रहे हैं, 8 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है, तो फिर आपने देखा कि आप जैसे और भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके साथ कब जस्टिस होगा, तो आपने कहा कि आप बाहर निकल के इनके लिए आप केस लड़ेंगे। देखें, इसमें मैं आपको सबसे बड़ी जो बात है ना जस्टिस डिले होने की वो बता देता हूँ कि वो ये है कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं और जजेस की तादाद बहुत कम है। और फिर उसके बाद अगर जजेस की तादाद कम है तो कॉम्पिटेंट लॉयर्स की उनसे भी कम है। ओके, ठीक है। तो ये फ्लॉ जो है इस पे ना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ सोचती है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोचती है कि हमने जजेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे। आप देखें ना, कॉम्पिटेंट लॉयर नहीं होगा तो वो कॉम्पिटेंट जज नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि लॉयर्स में ही जजेस अपॉइंट होने हैं। और अगर वो जुडिशरी की सीट पे भी वो उसी तरह के लोग बैठेंगे तो फिर वो क्या डिलीवर कर पाएंगे, उनको तो जजमेंट डिक्टेट करवानी भी नहीं आती होगी। ओके ओके। अच्छा, लेकिन अयाज वही वाला मेरा सवाल वहीं पर है, जैसे आपने देखा कि आपकी तरह और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी कैद में हैं, बेगुनाह हैं, तो उनके लिए आपने ऐसा किया कि आप निकल के आप उनके केस को परस्यू करेंगे? जी मैं बताता हूँ। मैं ऐसे डेथ पेनल्टी पे भी कैदी हैं जो मेंटली इल हैं, उनका जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलके मैंने 3 माह उनके लिए काम किया और उनके लिए हमने एक रिपोर्टेड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से हासिल की है, जिसमें एक बंदा अगर मेंटली इल है तो उसको सजाए मौत नहीं हो सकती, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। ओके, ठीक है, ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद जो ऐसे भी कैदी, ऐसे केसेस इन पाइपलाइन है कि जिन बंदों के जुर्माने, हर्जाने और दियत वगैरह की पेमेंट्स रहती हैं, उनके केसेस को मैंने पाइपलाइन लिया हुआ है, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ डिफरेंट। जी, और इसी तरह जो लोग गरीब लोग हैं, जी जी, अच्छा, गरीब लोगों के लिए उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए मेरी फर्म काम कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ आखिर में हमें ये बता दीजिए कि ये जो आपने कहा कि बैकलॉग बहुत है, जजेस की तादाद कम है और जाहिर है कि ये काफ़ी मसले मसाइल मौजूद हैं, कॉम्पिटेंट वकला, ये जो मॉडल कोर्ट्स का एक कॉन्सेप्ट आपके ख्याल में इज़ इट वर्किंग जिस तरह से करना चाहिए था? क्योंकि उसके अंदर जाहिर है कि वो जो मुकदमात को हम कहते हैं कि एडजर्न कर दिया जाता है, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत नहीं होती, तो वो इन मसाइल को हल कर रहा है काफ़ी हद तक। जी बिल्कुल, मॉडल कोर्ट का जो कंसेप्ट आया ना, ठीक है, ये इम्प्लीकेट होना चाहिए और इसको परमानेंटली हमारे सिस्टम में आना चाहिए। क्योंकि ये होता ये है कि आप देखें, जब वो आर्मी वाला सानहा हुआ बच्चों वाला, ठीक है, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है, सानहा होने के बाद हम लोग क्यों लाते हैं किसी सिस्टम को? जी जी जी, किसी की जिंदगी तबाह करने के बाद क्यों लाते हैं? लेजिस्लेटर को तो समझ में होना चाहिए ना कि क्या फ्यूचर में होने वाला है। लर्निंग का प्रोसेस जो है वो हर सतह पे होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, राय मोहम्मद अयाज हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरीके से उन पर जब केस हुआ, FIR हुई, इसके बाद फिर
وہ جیل میں تھے اور جیل میں انہوں نے 8 سال رہتے ہوئے جو چیز دیکھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی مجھے اب وکیل بننا ہے اور پڑھائی کی علم حاصل کیا. اور کہہ رہے تھے کہ جو ان کے ساتھ ساتھی قیدی تھے جن کو لگتا ہے کہ بے گناہ ہیں ان کے لیے And he آگے has a جا کے better کیس لڑیں گے. understanding of how the situation is, مطلب inside the کیونکہ بہت سارے آپ کو نا premises. پچھلے دنوں 2 سال پہلے ایسے ہی قیدی تھے جو 28 سال بعد جو کہ عمر قید میں تھے 28 سال بعد ان کی بے گناہی ثابت ہوئی اور پتہ چلا کہ ان کی تو ڈیتھ کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں. ایسا ہی ہے. سو ایسے بہت سارے کیسز میرے خیال سے جو ہے وہ اچھی جلدی ٹائم سے ہو جانے چاہیے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کہاں ملاقات کے والے سے بات کرتے ہیں اور یہ ملاقات ہوئی ہے دبئی میں اور یہ ملاقات ہوئی ہے 2 پرانے کولیگز میں 2 ڈاکٹرز کے درمیان اور یہ ملاقات ہے جناب سیاسی ملاقات ہے. اور یہ علاج معالجے سے متعلق نہیں تھی. ہاں علاج معالجے سے متعلق بالکل بھی نہیں تھی. یہ ملاقات تھی ڈاکٹر فاروق ستار کی ڈاکٹر عشرت العباد صاحب سے. اچھی ملاقات ہوئی میں نے سنا ہے. بڑی اچھی ملاقات ہوئی. اور دیکھیں کراچی کی سیاست میں ہلچل مچنا اور ساتھ میں پرانے ساتھیوں کو آپس میں ملنا یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اب انتخابی سیاست کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اور ماحول بننا شروع ہو گیا ہے. تو ایسے میں رابطے ہو رہے ہیں. عشرت العباد صاحب سب کے علم میں ہے کہ ایک عرصے تک سندھ کے گورنر رہے, خاصے انفلوئنشل تھے اور اس کے بعد اپنے عہدے کے میعاد مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے رخصت بھی ہو گئے تھے. تو لیٹس سی کہ وہ آنا چاہتے ہیں. اور لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ڈاکٹر عشرت العباد جو ہیں ان کی جو سیاسی سرگرمیاں تھیں وہ بہت عرصے سے ہم نے دیکھا کہ وہ کافی انیکٹیو چل رہے تھے. تو اب ان کی ایک طرح سے کم بیک ہو. پاکستان جو ایم کیو ہے ان کے رہنما عامر خان نے ان کی سیاسی سرگرمیوں کو کافی خوش آئند قرار دیا ہے اور ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ سمجھے کہ انہوں نے ایک طریقے سے ان کو ویلکم کہا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کا پلیٹ فارم مضبوط کرنا ہے. ساتھ میں بار بار جب یہ بات بھی کی جاتی ہے ایم کیو ایم سے کہ اگر آپ اپنے پرانے ساتھی آپ کو واپس آ کے جوائن کریں گے تو کیا آپ کا رد عمل ہوگا. تو اس میں ایم کیو ایم پاکستان کہتی ہے کہ جی چاہے فاروق ستار صاحب ہوں یا پھر مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہوں تو ہم ان کو ویلکم ہی کہیں گے. بالکل جی وہ تو کہہ رہے ہیں. تو فاروق ستار صاحب اس سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں اور اٹس اے گڈ تھنگ. بالکل جی. ذرا ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ ان کی ملاقات کیسی رہی. السلام علیکم فاروق ستار صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو کیا. یہ بتائے گا کہ آپ کی ابھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے جس کی پکچرز ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہیں ڈاکٹر عشرت العباد سے. ملاقات کیسی رہی, کن کن معاملات پر بات چیت ہوئی آپ کی ان سے؟ دیکھیں یہ سوال جو ڈاکٹر عشرت العباد کے ساتھ میں نے بات کی عشرت بھائی کے ساتھ اور جس ایجنڈے پر ہم کام کر رہے ہیں اب وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے. اس کو آپ محدود کر رہے ہیں میرے جو اسکوپ کو جو ہم نے اپنا اسکوپ بنایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں جو منقسم یا منتشر کوئی تو مانتا ہی نہیں کہ کوئی تقسیم ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ ہے. اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ سب ایک ساتھ کب بیٹھیں گے, لوگ کہتے ہیں. تو یہ لوگوں کو بھی ہم نے جواب دیا ہے. ان کی نفس پر ہمارا ہاتھ ہے. ہم عوامی لوگ ہیں, عوام میں جاتے ہیں, نوجوانوں کے ساتھ ہمارا وسیع تر رابطہ ہے, برادریوں کے ساتھ وسیع تر رابطہ ہے, کراچی کی شہریت اور معاشرت کے ساتھ ہمارا روز مرہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ اس کا ایک ذیلی ایجنڈا تو ہے کہ پہلے جو یہاں تقسیم انتشار ہے اس کو دور کریں, لیکن اسی حد تک نہیں. پھر جماعت اسلامی ہے, پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بھی وہ لوگ جو کراچی کا درد رکھتے ہیں, جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, کم از کم وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. اور کیا کوئی تعمیر اور ترقی کے لیے ایسا کمیشن بن سکتا ہے جو کل جماعتی ہو, آل پارٹی, کل شعبہ جاتی ہو, صنعت کار, تاجر, بلڈر, جس میں ہر سیاسی جماعت کے کراچی کے فرزند ہوں, وہ بیٹھ کر ایک کراچی اربن ڈیولپمنٹ اور اس کی لیجسلیشن ہو آرٹیکل 149(4) میں. تو یہ ہم نے آئینی سولوشنز دیے ہیں. اچھا کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں. یہ تو آپ سندھ کے وڈیروں اور اسلام آباد کے وڈیروں کی لڑائی میں, ہاتھیوں کی لڑائی میں کراچی والے مینڈک پس جائیں گے. بالکل. تو ہم نے وہ راستے دیے جو قابل قبول ہے, قابل عمل ہیں اور جن پر آج تک سوچا نہیں گیا آئین میں سے. بالکل سوچا جانا چاہیے. اچھا ملاقات تو ہو گئی عشرت العباد صاحب نے, تو کوئی اندیا دیا ہے انہوں نے کہ وہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جماعت جو آپ کی ہے وہ دوبارہ متحد ہو پائے گی؟ عشرت بھائی کی واپسی بہت جلد متوقع کو انشاءاللہ, اور بہت جلدی وہ آئیں گے اور میں نے بھی انہیں آنے کی دعوت دی ہے. وہ ہمارا اسیٹ ہیں. ان کی معاملہ فہمی, ان کی سیاسی سوجھ بوجھ, ان کی سیاسی بصیرت, یہ ساری چیزیں اس وقت ہم جہاں آ کے الجھ گئے ہیں, جس بحران میں کثیر الجہتی بحران, اس سے ملک کو بھی نکالنا اور کراچی کے کردار کو اجاگر کرنا ہے قومی تعمیر و ترقی میں. اور
اس میں کراچی کے جو 3 کروڑ سے زیادہ شہری ہیں اس میں ان کے لیے بھی ایک راستہ نکل رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ون ون سچویشن ہے کراچی والوں کے لیے, سندھ کے لیے, پاکستان کے لیے, اور ساری سیاسی جماعتیں اس میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں. میرے خیال میں اہم بات ہے. دوسرا آپ نے کہا کب ایک جماعت, دیکھیں پھر آپ نے وہی بات کر دی, محدود کر دیا میرے ایجنڈے کو. اس کو محدود نہ کریں خدا رہا. یہ صرف ایک جماعت کا نہیں ہے. آج میں اور عشرت العباد ہیں, کل خالد بھائی کے لیے گیٹ کھلے ہوئے ہمارے, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے, خالد مقبول بھائی. پھر اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان ہیں, مسلم لیگ کی جو مقامی اور قومی قیادت ہے, پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی جو قیادت ہے, اور پھر اسی طرح میں نے پی ٹی آئی کے لیے کہا. تو میں تو ہر پارٹی کے وہ لوگ جو درد رکھتے ہیں کراچی کے لیے, کراچی کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک موقع ملنا چاہیے, ان کو آگے آنا چاہیے, اور اس کے لیے ہم ایک اچھا مضبوط سیاسی عمل بنائیں, ایک قومی ایجنڈا بنائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی پازیٹیو, کافی ہوپ فل نظر آ رہے تھے کراچی اپنی اس میٹنگ کو لے کے کہ جی یہ میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ون ون سچویشن ہے. ہاں جی, سب کے لیے. آئی ہوپ سو. ہاں جی, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور اب ہمارا وہ سیگمنٹ آ گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے فٹنس سے متعلق. اور سردیوں کی آمد ہو چکی ہے, اور سردیوں میں ہماری باڈی کچھ زیادہ ہی فیٹ سٹور کرتی ہے کیونکہ اس سے سردی سے فائٹ کرنا ہوتا ہے, اور یہ ایک میکینزم ہے. اور تھوڑا سا ہمارے اندر سستی بھی آ جاتی ہے, ورک آؤٹ ہم کم کرتے ہیں اور کھاتے پیتے زیادہ ہیں, میٹھا زیادہ کھاتے ہیں, حلوے اور میوے کچھ زیادہ ٹھوسنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے منفی اثرات ہماری صحت پر مرتب ہوتے ہیں. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہم ذرا اس پہ جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے معمولات کو بہتر کر سکتے ہیں اور سردیوں میں بھی ہم اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فٹنس ایکسپرٹ رمیسا رمیز. رمیسا, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں, پھر وزن بڑھنے کے خدشات زیادہ ہیں, تو ابھی سردیوں میں کیا گرمیوں سے کس حد تک روٹین جو ہے وہ ورک آؤٹ کی چینج ہوتی ہے؟ بہت زیادہ لیزینس آ جاتی ہے باڈی میں سردی کی وجہ سے. تو یہ ہے کہ ورک آؤٹ کا ٹائم مارننگ میں جو لوگ کر رہے ہوتے تھے ارلی مارننگ, ان سے نہیں ہو پاتا ایزیلی. تو دیکھیں ورک آؤٹ کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے, آپ کبھی بھی آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, اپنی باڈی کو پش کر سکتے ہیں. تو ورک آؤٹ کے لیے بیسٹ ٹائم تو یہی ہے کہ ویسے مارننگ میں ہوتا ہے, لیکن رضائیوں میں لیٹنا پھر سردی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سستی فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو سب سے اچھا ٹائم یہی ہے کہ پھر آپ ایوننگ کر لیں, اور دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں ورک آؤٹ کا. تو دیکھیں کوئی ٹائم نہیں ہے, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں اس ٹائم کرنا ہے, جب آپ کو ٹائم ملے آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں نا. اور اچھا, ویسے سب سے مسئلہ یہ کہ سردیوں میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک تو سستی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, سردیاں ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رضائی سے باہر نہ نکلا جائے, اور باہر بھی ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو واک کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں سردی بہت زیادہ ہے, ٹھنڈ لگ جائے گی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. سونا زیادہ اچھا لگتا ہے. ہاں, سونا زیادہ اچھا لگتا ہے, نیند اچھی آتی ہے. پھر دوسرا یہ ہم ڈرائی فروٹس بہت کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اعتدال میں نہیں کھاتے, وہ کتنا نقصان دہ ہمارے لیے. بہت زیادہ, کیونکہ ہے تو وہ گڈ فیٹس بٹ ہمارے کیلوریز جا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کوانٹٹی میں بیلنس ڈائٹ کو لیتے ہوئے چلنا چاہیے سردی میں بھی. یہ نہیں کہ حلوے کھا رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں, اس طرح سردی میں آپ ڈیٹاکس ڈرنکس اچھے لے سکتے ہیں, جس سے آپ حلوے نہ کھائیں, یہ کہنا چاہ رہی ہیں. حلوے کھائیں لیکن کم کھائیں, اتنی زیادہ میٹھا کم ڈالیں, میٹھا کم چینی ڈالیں. ویسے ہی مہنگی ہے. ہاں, اسٹیویا شوگر کا آپ یوز کریں, جو آپ نے شو میں ہی بتایا تھا, میں نے دیکھا تھا. ٹریویا بھی. ہاں, اسٹیویا. لیکن اب یہ بتائیں کہ اچھا میں نے یہ ٹرائی کیا تھا, اٹس گڈ, اسٹیویا از گڈ. ہاں, اچھا یہ بتائیں کہ یہ اب ایکسرسائزز کیا کر سکتے ہیں, مطلب لائک ایکسرسائزز جو ہے وہ فیمیلز کے لیے جو ہے وہ لیگز ورک آؤٹ کے لیے آپ کو اسکواٹس وغیرہ آپ کر سکتے ہیں, لنجز کر سکتے ہیں, اپنا ہارٹ ریٹ تھوڑا ہائی کرنے کے لیے آپ جمپنگ جیکس, ہائی نیز, برپیز, یہ ایسی ورک آؤٹ ہے جس سے تھوڑا آپ کا ہارٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے, کیلوریز زیادہ برن ہوتے ہیں. اور پش اپس کر سکتے ہیں فار اپر باڈی. تو اس طرح کے بہت سارے, میں ریزسٹنس بینڈ بھی لے کر آئی تھی لیکن وہ ابھی اسپیس کی. تو اس میں یہ ریزسٹنس بینڈ سے یہ ہوتا ہے کہ ڈمبل تو پورٹیبل نہیں ہے, کہیں بھی ہم لے کے نہیں جا سکتے, لیکن ریزسٹنس بینڈ جو ہے آج کل بہت زیادہ ان ہے اور بہت اچھا ہے, وہ وہی ورک کرتے ہیں اور وہ آپ کے اپنے باڈی ویٹ کے حساب سے, باڈی ویٹ کے حساب سے. اور اس پہ آپ کا کور کا پریشر بہت زیادہ آتا ہے, کیونکہ آپ نے اگر ریزسٹنس بینڈ کو چاہے ہاتھ کی ایکسرسائز آپ کھڑے ہو کوئی بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, تو وہ کور انلیس اور انٹل آپ کا اسٹرانگ نہ تو آپ اس کو نہیں کر سکتے. اب جیسے ہم چیسٹ ورک آؤٹ کرتے تو ڈمبلز کے لیے ہمیں بینچ چاہیے ہوتی ہے, اب اس کے لیے ہم اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی کر سکتے, کہیں بھی آپ ہینگ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں, کہیں پر بھی آپ نے پائپ
देखा आप शुरू हो गए, जैसे प्लास्टिक TRX वाला ना देखना। हाँ, हाँ। और उसका इजी ये भी है, वुमेन्स के लिए भी अच्छा है, उसका जो मोमेंटम लगता है ना बॉडी में, हाँ। तो वो वर्टिकल, और रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है। हाँ, रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है। और डंबल्स में ये होता है कि वर्टिकल वे में हमें वेट उठाना है, कैसे हमें नीचे से ही 3 kg है तो जी। 3 kg, उसमें फोर्स हमारे जितना ऊपर आएगा उतना हमारे मसल्स पे फोर्स अच्छा, पड़ेगा। उसमें हमारी ये भी आदत होती है कि अगर हम जैसे डंबल्स उठा के भी करें ना, तो हम हाथ हमारे चाहे यूं जा रहे हो या ऐसे जा रहे हो, गलत है। हमें पता होता है कि हमें कोनी एग्जैक्टली तक अपनी कमर तक Postures लॉक हमारे करनी ठीक नहीं होती है, होते, हमारे exactly। पोस्चर्स जो है वो हमारा बड़ा इशू है। और अच्छा, क्रॉसफिट एक्सरसाइज हम देख सकते हैं जिसमें कि आपने घर में बोला कि जैसे रेजिस्टेंस बेल्ट भी आप लेकर आई हैं, तो उससे मदद मिल सकती है अगर हम ऑनलाइन भी थोड़ी बहुत देख लें या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख हाँ लें? हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारी होती है रेजिस्टेंस बैंड की, आप उससे इजीली अपने किसी भी मसल्स को हिट कर सकते हैं, शोल्डर, लेग्स, बैक, तो बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा, और टाइम, मिसाल के तौर पर गर्मियों में आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? अगर फ़र्ज़ करें कि आप 1 घंटा या सवा घंटा जिम जाके दे रहे हैं, सर्दियों में भी सेम टाइम दें या उससे टाइम मैटर नहीं करता? टाइम मैटर नहीं करता। और मैं एक ये भी शेयर करूंगी कि लोगों का मिथ होता है कि हमें ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो दुबले हो जाएंगे, और घंटों जो है वो सुहाना ले रहे होते हैं। आपने देखा होगा बेल्ट का भी ऐड आता है तो हाँ। उसमें स्वेटिंग दिखाते हैं कि देखें स्वेट हो रहा है, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपको डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो नहीं, वो जाती है। टोटके इस तरह के में विक्स लगाएं फिर उसके ऊपर एक हाँ, रैप ये करें, सब प्लास्टिक आपका शीट और मिथ पता नहीं है, ये क्या आप अपने बॉडी के साथ नुकसान करते हैं। इवन जब आप वर्कआउट करें उसमें भी आप हाइड्रेट रहें, अच्छा, पानी Sip पीते रहें। लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हम अपने आप को वर्कआउट के लिए रेडी करने के लिए भी हम कैफीन का इंटेक बढ़ा देते हैं। जैसे जिम से पहले हम एक ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, हमारी कोशिश होगी उसके बाद भी, और समहाउ में होता है कि जी क्योंकि हमने वर्कआउट कर लिया है, खुद को एक्टिव करना है, तो हमें कैफीन का इंटेक बढ़ाना है ताकि हम अपने आप को alert जगा हों। सकें। हाँ, इज इट मतलब ये फायदेमंद है या बहुत नुकसानदेह ज़्यादा है? नहीं, बहुत ज़्यादा इंटेक लेना कॉफ़ी का ये भी गलत है। आप 1 टाइम अ डे और बहुत से बहुत 2 टाइम्स अ डे ले सकते हैं, बाकी वो आपके लिए फिर नुकसानदेह क्योंकि है। पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तान में जो कॉफ़ी बन रही होती है ना, जो हम सर्दियों में बड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उससे पहले कॉफ़ी डालो, 2 चम्मच उसमें चीनी डालो, उसको हाँ। फेंट के आप कॉफ़ी बनाओ, और फिर हमें बड़ा मज़ा आता है सारा दिन वो कॉफ़ी पीने में। नहीं, और बातें करते देखो आपके लिक्विड कैलोरीज चलो फिर ज़्यादा कॉफी- बढ़ रहे होते हैं। हाँ, तो ये मुझे बताएं हमें दिन में कितनी कॉफ़ी पीनी है, ये भी बता दें। दिन में 2 टाइम्स पिए और इसमें शुगर का यूज़ ना करें, स्टीविया दूध? यूज़ करें, या फिर हाँ, और दूध? दूध आप लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका वेट गेन होगा। एक टाइम आप दूध के साथ ले लें, फिर वैसे आप ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ करें। सुन लिया आप लोगों ने, ये जो आप लोग ज़्यादा कॉफ़ियाँ पीते हैं ना, चस्के लेके चुस्कियाँ भर भर के, वो आपकी सेहत के लिए कितना बता नुकसानदेह के दिखा साबित हो दिखा के। सकता है। अच्छा, मुझे क्विकली ये बताइए कि बहुत सारे लोग जिनको ऑलरेडी नी पेन होती है और पोस्चर का मसला, तो हम तो अच्छे पोस्चर के साथ जिम में एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, तो हाँ। घर में अगर खुद करेंगे तो वो तो हमारे नुकसानदेह साबित हो सकता है। एग्जैक्टली अच्छा, ग्लूट ब्रिजेस एक ऐसी एक्सरसाइज है, उससे जो है वो आपके नी पे पेन नहीं होता, आप इजीली आप उसको पूरी बॉडी को एलिवेट करके ठीक है। कर सकते हैं। उसमें आपका ग्लूट्स के मसल्स हिट होते हैं, बैक, हाँ। और आपका जो बेली पाउच होता है ना, हाँ। वो भी टाइट होता है। तो ओके। तो ग्लूट ब्रिज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और बर्ड डॉग है, एक इस तरह की वर्कआउट्स हैं। ये सर्च कर लीजिएगा आप यूट्यूब पे। बर्ड डॉग जगह और ढूंढने में डैड, काफी हो सकती है। तो इसमें अगर जगह होती तो मैं ज़रूर करके बताती। ठीक है। उससे ये है कि आपके नीज पे भी थोड़ा कम पड़ता है, और स्क्वाट्स आप कर सकते हैं, लेकिन एज अ सपोर्ट आप कर लें। हाँ। या बॉल आती है, हाँ। आपने देखा होगा बड़ी- जिम में बड़ी सारी बॉल उसमें आती है। आप अपना बैक को ताकि एज अपने अ आप को सपोर्ट injure ना करके कर फिर लें। आप इजीली नीचे हो वो स्विच सकते बॉल जो हैं। होती है चलिए, इसके लिए। विल डू अ डिटेल सेगमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच जी। रुमैसा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। हम एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। और इससे पहले कि हम कौम से खिताब करें, हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर मुराद अली शाह जो कि वजीर आला सिंध हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं। उसने उसी वक्त मेम्बरान को आगाह करना है, मेम्बरान को वो कॉपी देनी है और सदर साहब से कहना है कि जी ज्वाइंट सिटिंग बुला लें। लेकिन वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं आती। धांधली के लिए अगर ज्वाइंट सिटिंग है, खैर इस वक्त उन्होंने उस एजेंडा को, मुझे रात को देर से पता चला, वो एजेंडा में भी आइटम में रखा है और उसका 60वां नंबर है, 60 ऑर्डर्स ऑफ द डे आते हैं। पहला आइटम तिलावत कुरान पाक से शुरू होता है, ये 60वें नंबर पे है, आखिरी। इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि 8 अक्टूबर को स्पीकर साहब ने ये सब मेम्बरान को आगाह किया और मैंने कुछ मेम्बरान से बात की, उन्होंने कहा जी हमें बिल्कुल आगाह नहीं किया गया। शायद गलत बयानी हो, स्पीकर साहब भी देख सकते हैं और मेम्बरान का प्रिविलेज है, वो मेम्बरान ही उस पर बात कर सकते हैं नेशनल असेंबली
और सेनेट के मेंबरान उस चीज़ पे। इसके अलावा एक और आइटम हमने गालबन सितंबर के महीने में जो इनकी एनर्जी पॉलिसी थी, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी थी, उसमें इन्होंने सारे मुल्क में जो बिजली की सूरत हाल में, पहले भी इसका शायद आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ, बिजली की सूरत हाल पे इन्होंने कहा था कि जी हमारे पास वाफर मकदार में बिजली मौजूद है और बिजली बनाने की ज़रूरत नहीं है, और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी बंद कर दिया, ख़ासतौर पर सिंध में हमारे विंड के प्रोजेक्ट्स। तो उसके भी हमने चैलेंज किया था, सूबाई काबीना ने उसको भी रेफ़र किया और वो है ही नहीं इजलास के एजेंडा में। तो ये नाअहल लोग जो आइन की पासदारी नहीं करते हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और मेरा नहीं ख्याल है कि ये इमरान खान की हुकूमत इस मुल्क को आइन के तरीके से चला सकती है। मैंने आपको दो छोटे से एग्जाम्पल दिए। ये अगर आइन के तरीके से चला नहीं सकती तो इसके जाने का टाइम आ गया और इंशाअल्लाह ताला ये चल जाएगी। सर क्या कहेंगे दूसरी कि सिंध में जो है बात जो है सिंध के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट, उसके ऊपर फंडिंग बार लोग लेते हैं, दूसरी तरफ से फिर सिंध में अपोजिशन में जो पीटीआई के रहनुमा अली वाला शेख वो क्रिटिसिज्म करते हैं, तो इस सियासत की जा रही है सिंध में जब मामला को नहीं, मैं कह रहा हूँ ये नाअहल ना समझ लोगों का एक मजमा जमा हो गया। अभी ताज़ा एक और भी वाक़या, एक और भी इशू हुआ है। इन्होंने यूनिलैटरली हमारे कुछ अफसरान, यानी हमारे अफसरान में इसलिए कहूँगा ये फेडरल के अफसरान नहीं है, ये दिया जाता है वो कि फेडरल के अफसरान है, उनकी जो मर्जी है इनके साथ करें। ये फेडरल के अफसरान नहीं है। 1956 का सिविल सर्विसेज का इनकार्डमेंट रूल्स है जो आज तक वैलिड है, वो 2020 में भी उसमें अमेंडमेंट हुई है। उसमें इनको लिखा गया है दीज आर ऑफिसर्स ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन होती है वफाक और सूबे मिलके, और वो कानून जब बना था उस वक्त के गवर्नर जनरल और सूबों के गवर्नर्स ने मिलके ये कानून बनाया था। तो ये फेडरेशन के ऑफिसर्स हैं और इसका रूल 15 है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये यूनिलैटरली नहीं किसी को ला सकते, भेज सकते या ले जा सकते, इसलिए फेडरेशन के ऑफिसर है। फेडरल ऑफिसर्स नहीं है। ना समझ, ना अकल, कम अकल, ना है, लोगों को ये समझ ही नहीं आती है। ये समझते हैं इनकी जागीर है ये अफसर, और अगर सूबे में कोई सही काम कर रहा है तो उसको उधर से निकाल लो ताकि सूबाई हुकूमत कमज़ोर पड़ जाए। तो इन नाअकलों ने ये अफसरों को ट्रांसफ़र किया। हमने उसका जवाब दे दिया उनको कि जी ये हम समझेंगे आपका प्रपोजल, इसमें कानून ये कहता है कंसल्टेशन होगी, मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी, और फिर सूबाई काबीना, उसमें गवर्नमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल है, वो फैसला करेगी कि जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रपोजल आया है रिगार्डिंग दी ऑफिसर्स ऑफ द फेडरेशन, वो हमने मंजूर करना है या नहीं करना है, कितने हद तक मंजूर करना है। उसमें लफ्ज़ लिखा है अप्रूवल का, विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। वो अप्रूवल मेरी आई नहीं है, मैंने अपनी काबीना से हिदायत लेनी है, कल काबीना का इजलास है। तो ये मसला ये सारा है कि इनको ना आइन की समझ है ना किसी कानून की समझ है। मैंने आपको आइन का बता दिया कि जी 154(7) आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस वक्त तक सेंसस फाइनल नहीं हुआ, नोटिफाई उन्होंने कर दिया, हमने उसको चैलेंज किए, वो पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग में उसका फैसला होना है। आपको मैंने कानून के बारे में बता दिया। इस तरीके से आपने फंडिंग की बात की, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, पहले NEC में जब आई थी ये बात, उनको नंबरों के साथ बताया था कि सिंध के साथ कैसे नाइंसाफी की जा रही है, जिस पे वो आग बगोले भी हो गए थे। तो फिर ये किसी भी ना आइन, ना कानून, ना एडमिनिस्ट्रेटिव किसी चीज़ में इनकी है नहीं। और जब कहीं परेशानी होती है तो बुला लेते हैं दो तरह से लोगों को। अभी भी ये हो रहा है, मैंने ये सुना है कि फ़ोन कॉल्स जा रही हैं, आ रही हैं, कहा मुझे बचाओ, नहीं बचाते तो मैं तो डूबूंगा, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस टाइप की बचकाना हरकतें जो है ना, ये इस वज़ीर आज़म साहब के दौर में हो रही है, जो हमने पहले ना कभी सुनी ना देखी। अल्लाह करे कि आगे ना देखें, जो उन्होंने माहौल पैदा किया है। और अगेन मैंने कहा ना, ये जो हवाएं इस्लामाबाद में चल रही हैं, इनका अफेक्ट कराची में भी समझ आ रही है। इस वजह से ये बुखला गए, इनके उधर के लोग अजीब व गरीब बयानात देते, और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क के लोग हैं इनको और ज़्यादा चलने की
अच्छा सर, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई तो उनका सबसे इफेक्टिव जो बयानिया था वो एहतसाब का बयानिया था। अब 3 साल से ज़ायद वक्त हो चुका है, अपोजिशन पर केसेस भी बहुत सारे बने, भुगत भी रहे हैं। आप क्या समझते हैं वो जो बयानिया था कि एहतसाब किया जाएगा, पैसा रिकवर किया जाएगा, वो कितने कामयाब हुआ है? आप लोग मुझे बताएं कितना कामयाब है। मुझे तो कहीं भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक्सेप्ट के लोगों की तस्वीर करना। इस मुल्क ने हालत ये कर दी है, पहले सियासतदानों की तस्वीर से बात शुरू हुई। इस वक्त आपके मुल्क के अच्छे लोग, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए सियासत में आने के लिए, और कमज़ोर दिल के लोग अब सियासत में नहीं आते। जी, तो हम देख रहे थे कि इस्लामाबाद में नैब कोर्ट के बाहर सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे थे और कहते कि आखिरी चंद कुछ महीने रह गए हैं हुकूमत के पास, इस हवाले से बात कर रहे थे। आज खैर बड़ा अहम इजलास, इस हवाले से दोबारा बात भी करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी होगी एक और अहम केस की समाअत। एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन राइट सफ्तर की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। साबिक जज राना शमीम के इंकशाफात के बाद समाअत की अहमियत अब बढ़ गई है। मरियम नवाज की अपील दायर करने के बाद ताखीरी हरबे, कभी वकील बीमार, कभी वकील ने पैरवी छोड़ दी और फिर नया वकील आ गया। कराची में 2 साल पहले समोसे फरोख्त करने वाले बच्चे की वायरल होने वाली वीडियो ने जिंदगी बदल दी। स्कूल में तालीम का सिलसिला जारी, लेकिन समोसों का स्टॉल आज भी बरकरार। वालिद की कम आमदनी पर सहारा बन गया। जी, और सबसे पहले तो आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब ने की है एक ट्वीट, और अपनी ट्वीट में वो कहते हैं कि आज तहरीक इंसाफ एक और इंतखाबी वादे की तकमील करेगी। इंशाअल्लाह आज ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का कानून पास होगा। ईवीएम से वोट का कानून जमहूरियत को मजबूत बनाने में संगे मील साबित होगा। बिल्कुल जी, तो ये फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का इरादा रखती थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और इस हवाले से वो कानून पास करवाना चाह रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि आज तहरीक इंसाफ एक और इंतखाबी वादे की तकमील करेगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट का कानून पास होगा और ईवीएम से वोट का कानून जमहूरियत को मजबूत बनाने में संगे मील साबित होगा। जी, तो आज होने जा रही है एक और अहम केस की समाअत। एवनफील्ड के जो सजाएं मिली थी मरियम सफ्तर साहिबा को और उनके हस्बैंड को, इस पर आज होगी समाअत। और स्पेसिफिकली हमने देखा है कि जो पिछले कुछ दिनों से जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज है, क्योंकि जस्टिस राना शमीम ने जो इंकशाफात किए हैं उसने अब इस केस की अहमियत को बढ़ा दिया है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन राइट सफ्तर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल रुकनी बेंच करेगा। बिल्कुल जी, बेंच करेगा। और गुज़िश्ता समाअत इससे पहले 13 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें मरियम नवाज ने वकील इरफान कादिर ने अदालत को बताया था कि नैब ने केस की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि रेफरेंस दायर करे और JIT तश्कील देने की हिदायत दे। तो ये काफ़ी अहम पहलू हैं जो कि आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे ये लगता है, और जो कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि इसकी सियासी अहमियत हो सकती है, लेकिन कानूनी लिहाज से जो उनके इंकशाफात थे तो वो इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि सियासी तौर पर उनको फ़ायदा वो चीज़ दे सकती है, लेकिन अदालत में जो केस होगा तो उसकी समाअत मेरिट के मुताबिक ही होगी। सही। अच्छा, इसके अलावा सती हमने देखा कि इस केस में काफ़ी ज़्यादा ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हुए हैं। वो ताख़ीरी हरबे क्या थे, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। एवनफील्ड केस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज होगी, लेकिन अपील दायर करने के बाद कभी मरियम तो कभी उनके वकील इल्तिवा देते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 जुलाई को अपील समाअत के लिए मुकर्रर की। वकील अमजद परवेज ने कोरोना का शिकार होने के बायस 3 हफ्ते का वक्त मांगा और फिर कहा केस की तैयारी के लिए 3 हफ्ते दरकार है। आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए 15 जुलाई से केस हफ्ते में 2 बार सुना जाएगा, जिस पर मरियम
मरियम नवाज के वकील ने ज्यादा देर खड़ा न होने का कहा। जवाब में जजों ने कहा कि अदालत में बैठने का इंतजाम कर दिया जाएगा। फिर जुलाई में ही एक बार मरियम ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, दूसरी बार कोरोना होने पर हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल किया। 2 सितंबर को मरियम नवाज अदालत पहुंची तो उनके वकील अमजद परवेज गायब थे और दरख्वास्त जमा करा दी कि 16 अगस्त से 3 सितंबर तक दस्तयाब नहीं हो सकते। मरियम के ऊंचा बोलने पर जजों ने रिमार्क्स में कहा कि इस पर तो मुल्जिमा की जमानत मनसूखी बनती है। अदालत ने केस फिर 8 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। 8 सितंबर को मरियम नवाज ने अदालत को बताया कि अमजद परवेज ने मजीद पैरवी से माजरत कर ली है। इस पर अदालत ने केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जब दोबारा समाअत हुई तो नैब ने रोजाना समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। मरियम की तरफ से अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि इरफान कादिर नए वकील हैं और तैयारी के लिए 1 माह की मोहलत दी जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बार बार ताखिरी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। आज एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी, लेकिन इससे 2 दिन पहले जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के इंकशाफात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तो जनाब आज ये समाअत होने जा रही है, तो क्या सिचुएशन है, कब तक समाअत शुरू होगी? जहांगीर असलम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। जहांगीर, ये बताइएगा कि समाअत कब तक होगी और क्या ये तासुर जैसा दिया जा रहा है कि ये जो बयान हल्फी था उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, तो ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो अपीलें उन्होंने दायर की हैं अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, और नेब ने मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की जो रिट पिटीशन दायर की है वो भी आज समाअत के लिए मुकर्रर है। और आज तकरीबन 12:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। जो एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज़ को 7 साल और जो है कैप्टन सफदर को 1 साल की सज़ा सुनाई थी, उनकी अपीलों की समाअत आज होगी। लेकिन आज जो इंतहाई अहमियत का आमिल समझा जा रहा है, इसलिए जो कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस ने जो बयान एलपी जारी किया था, उसके बाद जो कल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आतर मिन्ला ने समाअत के बाद जो हुक्मनामा जारी किया था, और आज के जो है बेंच के और समाअत के हवाले से भी उस आर्डर में भी जिक्र डाला है कि जी आज जो बेंच में समाअत होगी आज इंतहाई अहमियत का आमिल है, क्योंकि कल भी जो है चीफ जस्टिस ने इस बेंच के समाअत के लिए भी जो है जिक्र डाला हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो है मुतनाज़िया बयान एलपी जारी होने के बाद आज प्रोसीडिंग इंतहाई अहमियत का आमिल है, क्योंकि जिस जज का नाम लिया जा रहा था और वो जज साहब आज जो है बेंच पे समाअत करेंगे। और आज जो है मरियम नवाज़ अपने वकील इरफान कादिर के साथ अदालत में पेश होंगे। इससे पहले मरियम नवाज़ ने जो है अमजद परवेज़ को वकील किया हुआ था, जो कि 6 पेशियों में से सिर्फ 4 पेशियों में वो अपीयर हुए थे, हाजिर हुए थे, लेकिन उसके बाद अब जो है इरफान कादिर, क्योंकि आज समहाउ ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि आज भी मरियम नवाज की जानिब से कोई मजीद दस्तावेज़ात पेश की जाएं। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक तरीक़ाकार है कि यहाँ पर अगर कोई दस्तावेज़ात किसी ने पेश भी करने हो तो वो 1 दिन पहले या समाअत से पहले वो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस में इंस्टीट्यूशन ब्रांच में वो मुतफर्रिक दरखास्त के साथ वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराया जा सकता है। लेकिन वो वक्त अब गुजर गया। आज तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराया गया, क्योंकि ये सिविल कोर्ट नहीं है कि वो जो है जज साहब के हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दें। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पर जो है एक प्रोसीजर के तहत, यानी समाअत से पहले या तो फिर एक दिन पहले जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। और आज जो है वो वर्बली जो है वो उनके वकील या मरियम नवाज़ बेंच पर जो है जो भी अल्फाज उनके होंगे वो तो वक्त ही बता देगा, लेकिन अभी कबल वक्त है और 12 बजे के बाद जो है इस केस की बाकायदा तौर पर समाअत होगी। ख्याल के यही किया जा रहा है मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से कि आज जो है यहाँ पर जो है इंतहाई अहमियत का आमिल है। लेकिन यहाँ पर हम सिक्योरिटी के अगर हम देखें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आज समाअत के लिए बढ़ा दी गई है, क्योंकि नेब की जानिब से जो मरियम नवाज़ की जो ज़मानत है उसकी मनसूखी की भी समाअत है। हो भी सकता है कि आज ज़मानत मनसूख हो तो मरियम नवाज़ यहीं से गिरफ्तार भी हो सकती है अगर ज़मानत मनसूख हो। और लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और यहाँ पर जो है सादा लिबास में मलबूस भी पुलिस के एहलकार और चले जी, आज का केस बहुत ज़्यादा आम है और हो सकता है कि आज अगर मरियम नवाज़ और उनके हस्बैंड जो हैं उनकी
ज़मानत मनसूख हो जाती है तो आज हो सकता है कि आज अदालत के अहाते से ही मरियम नवाज साहिबा और उनके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। जहांगीर असलम नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का भी। जी, आज हम देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि एक तो ये अभी देखेंगे विन विन सिचुएशन किसकी है, चाहे वो अदालत में हो या अदालत से बाहर। बिल्कुल जी, ये देखना होगा। अच्छा, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के जो इंकशाफात किए गए थे, एक नोटराइज्ड उनका बयान हल्फी सामने आया था लंदन से, उस पर अस खुद नोटिस की समाअत गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई थी, जिसकी डिटेल्स हमने बराह रास्त भी आप तक दी थी। और इसमें चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, खबर शाया करने वाले अखबार के चीफ एडिटर और रिपोर्टर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और उस पर उनसे 7 दिन में जवाब तलब कर लिया है। और चीफ जस्टिस ने मार्च में कहा कि तासुर है कि हल्फनामा झूठा और गलत है, जबकि ये जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं है। बिल्कुल जी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आपको कोई बयान हलफी दे तो क्या फ्रंट पेज पर छाप देंगे? आप इन्वेस्टिगेशन के माहिर हैं, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की? और सवाल उठाए कि साबिक जज ने बयान हलफी बाहर क्यों नोटराइज किया। 16 जुलाई को अपील दायर हुई तो कौन सा बेंच था? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने साथ में भी पूछा कि राना शमीम या अंसार अब्बासी सबूत ले आए तो वो साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राना शमीम के बेटे ने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में इंकशाफ किया है कि राना शमीम नून लीग सिंध लॉयर्स विंग के नायब सदर रह चुके हैं। एडवोकेट अहमद हसन राना ने कहा है कि हलफनामे से नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मुकदमात में फ़ायदा होगा, जबकि बयान हलफी सहाफ़ी को देने से मुतालिक सवाल पर कहा कि इसका जवाब आप राना शमीम से खुद ही पूछें। आपने कब देखा पहली मर्तबा जी? जी, मैंने तो अभी तक इसकी सिर्फ व्हाट्सएप कॉपी देखी। मेरे वाले साहब ने अभी तक मुझे वो भी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि जी हम इस पर आराम से डिस्कस करेंगे जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे बस इतना बता के गए थे मैं कॉन्फ्रेंस पे जा रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। पब्लिक में आ गया, प्रेस पे चला गया, छप गया, खबरें हो गई, वीलॉग्स हो गई, लेकिन आपको नहीं पता। आप बेटे वकील हैं, एक दूसरे से बड़ा छुपा के चलते हैं। हमें आप वो भी मुझे आराम से अपने फैक्ट्स बताएंगे। अभी तो मैं उनको फीस नहीं चार्ज कर सकता, वरना फीस चार्ज कर रहा होता तो वो अभी तक सब कुछ बता चुके होते। ऐसी जल्दी क्या थी नोटराइज कराने की? लंदन से वापस आगे करा लेते। आज वापस आ गए थे कल रात को, आज नोटराइज करा के आज पब्लिश करा देते। देखें, ये सवाल तो आपका काशिफ अब्बासी साहब राना मोहम्मद शमीम साहब से बनता है, वही जवाब दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। सो सॉरी, नो कमेंट्स। ये कनेक्शन क्या बन रहा है? मियां साहब लंदन में है, उनका एक नोटरी पब्लिक है। मैं नहीं देता, आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही ना काशिफ अब्बासी साहब। ये सवाल तो आपका राना मोहम्मद शमीम साहब से बनता है। हियरिंग लगी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, कोई जवाब नहीं आया कि इस वक्त ये एफिडेविट क्यों दिया गया। देखें, ये फिर मैं आपको रिपीट करूंगा, ये सवाल आपको राना मोहम्मद शमीम साहब से पूछना चाहिए। चलें जी, सारे सवाल राना शमीम साहब से पूछें। जाहिर है कि ही इज़ द वन हु कैन आंसर एवरीथिंग, लेकिन लेट्स सी कि उनका क्या इस पे मौक़िफ़ सामने आता है। अभी ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल जी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, अब उस नासूर की हम ज़रा बात कर लेते हैं इस मुल्क में जो फैला हुआ है, जिसने शहरियों की, आवाम की ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी है। वो ये है कि पहले नौमर लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, फिर उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर उन वीडियोस के ज़रिए उनको एक अरसे तक ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर उसके बाद ये भी किया जाता है कि ब्लैकमेल भी किया जाता है। उसका वजह पैसे का हुसूल भी हो सकता है, कोई और वजह भी हो सकती है, और इसके साथ साथ फिर उन वीडियोस को वायरल भी कर दिया जाता है। बिल्कुल जी, अगर पैसे ना मिले, क्योंकि सती अभी हमने देखा है कि इस्लामाबाद में एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है जो कि 9 उम्र लड़कियों के साथ ज्यादती करता था, उनकी वीडियोस बनाता था, उन वीडियोस की बुनियाद पर फिर वो उनको ब्लैकमेल भी करते थे। और इसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इन मुल्जिमान में पंजाब पुलिस के 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। अच्छा, मैं तो पहले ये चाहूँगा कि बिफोर वी टॉक मोर अबाउट दैट स्टोरी, जस्ट लुक एट दीज पीपल, दीज आर जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल जो कि हमारे दरमियान, हमारे आसपास इधर उधर रहते हैं, और बज़ाहिर इनको देखने से आपको तासुर नहीं जाएगा कि ये इतने सफाक किस्म के लोग हैं और इस तरीके से किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि इनके चेहरे दिखाए गए हैं ताकि लोग आगे, हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी को अरेस्ट किया गया, कुछ अरसे बाद वो मामला हल्का फुल्का चला, उसके बाद वो छूट जाते हैं और फिर वो दोबारा वो कर देते हैं। सत्य दिखाने चाहिए ये चेहरे अच्छा, के बदले। आपको देखिए लग रही है कि अच्छी फैमिली से, मुझे ऐसा लग रहा होगा ना किसी को देख के, जी थोड़ी कितनी मासूम शक्लें बनाई हुई उन्होंने, तो ऐसा नहीं है जनाब। ये लोग पकड़े गए हैं और ये अभी लास्ट पे उनकी कार्रवाई थी कि जी लड़की से 5 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे, और अगर वो बच्चियां इनको 5 लाख ना दे सके, आप सोचो बच्चियां घर में क्या चोरी करती होंगी, किस तरीके से फिर इनसे मैनिपुलेट होती होंगी। और ये कहते थे कि जी अगर पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारी
वीडियो शेयर करेंगे। ट्रॉमा अलग है, बहुत सारी लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी एक्स के, अपनी वाइफ्स की जिस तरह की वीडियोस और जो पिक्चर्स हैं वो वायरल कर देते हैं, फिर उनको भी ब्लैकमेल करते हैं। तो अभी जो पूरी कार्रवाई हुई है इस हवाले से और कैसे बच सकते हैं इस कार्रवाई से, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान जो कि डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कैसे पता चला आपको, क्योंकि उमूमी तौर पे जब ऐसा किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी लड़की के साथ कोई हादसा होता है, वो ब्लैकमेल हो रही होती है, पहली बात तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आके जाके किसी को बता सके कि भी हम ब्लैकमेल हो रहे हैं और हमारी कुछ वीडियोस इनके पास हैं। आपको कैसे पता चला? उसमें बेसिकली रीज़न ये सबसे बड़ी जो रीज़न यही होती है कि रीज़न ये होती है कि जब बच्चा ब्लैकमेल हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा है, स्पेशली माइनर्स, दे डोंट शेयर विद एनीवन ना वो अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो फैमिली से डर रहे होते हैं, पेरेंट्स से डर रहे होते हैं कि जब पता लगेगा तो वो मतलब ब्लेमिंग आएगी और सारी बात है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये है कि जब भी कोई माइनर इस तरह बात होती है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ विक्टिम ब्लेमिंग, जो टर्म यूज़ होती है कि विक्टिम को ब्लेम किया जाता है कि दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। इस फियर के चक्कर में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ब्लैकमेल होते हैं। तो इसमें भी ये हुआ था कि मतलब इनमें से जो सुभान लड़का है, इसने बच्चियों के साथ फेसबुक के ऊपर कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके उनको चाय पे पिलाया और एंड देवर मतलब जो स्टूडेंट थी ये बच्चियाँ, ठीक है, बुला के उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं आपको जॉब दूंगा, आपने मतलब जो है ना अपने फ़ोन करना है और फ़ोन करके मैंने लोगों से पैसे लेने होते हैं और रिकवरी करनी है। अच्छा। एंड इस तरह उन्होंने बात की, बात करके उसके बाद उन्होंने कहा जी नेक्स्ट टाइम दोबारा कॉल की एंड दे टुक बोथ ऑफ द माइनर जो गर्ल्स हैं उनको मतलब एक आउटसाइड जो है ना स्कर्ट्स में ले गए रावलपिंडी के, वहाँ पे जाके उनको दे आर अबाउट बिलो 18 है, 16 और 17 ईयर्स के दरमियान में है ना जी। बड़े जो है वो खतरनाक है, ज़ाहिर है कि और पाकिस्तान का ला ये है कि बिलो 18 ईयर इज कंसिडर्ड एज अ माइनर। जी जी बिल्कुल जी, उसको ना तो उनका कोई कंसेंट नहीं हो सकता। जाहिर है कि वो अपनी ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपनी मर्जी से गई थी, बल्कि जाहिर है कि बिकॉज दे आर माइनर्स तो ये कह के जान नहीं छुड़ाई जा सकती। दिस इज़ अ यूनिवर्सल रूल दुनिया पूरी में और पाकिस्तान में ये है कि माइनर को बेसिकली ये जो ग्रूमिंग होती है ना कि आप उसको अपनी डिज़ायर के लिए या अपनी ख्वाहिश के लिए यू ग्रूम देम ना, दे ऑलवेज कंसिडर एज अ माइनर जो है ना वो एज अ विक्टिम ट्रीट होते हैं एंड वी ट्रीट देम एज अ विक्टिम ना। और अगर हम उनको मतलब ये बात करें कि जी मतलब उनका भी कसूर है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ विक्टिम ब्लेमिंग। बिल्कुल जी, विक्टिम ब्लेमिंग। इसी वजह से जो है ना कंप्लेनेंट्स जो है ना वापस नहीं। अब जरा ये बताएं कि ये तो चले हो गया, हम गिरफ्तारियों के हवाले से अक्सर बातें करते हैं, बड़े खबरें चलाते हैं कि ओहो जी गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए, उसके बाद मसला आ जाता है उनको सज़ा दिलवाने का, तो उसके अंदर कितने अवामिल होते हैं जो रुकावट बनते हैं? आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनी हर्डल। उसमें एविडेंस होता है, हमारा सारा एविडेंस बेसिकली डिजिटल बेस्ड एविडेंस होता है। अच्छा। कि अगर उन्होंने कोई वीडियोस बनाई हैं, पिक्चर्स बनाई हैं, वो मोबाइल पे हैं, वो मोबाइल हम सीज़ करते हैं। जो कम्युनिकेशन है वो भी ज़ाहिर है अब सारी फ़ोन, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के ऊपर है, उनका फोरेंसिक होता है। फोरेंसिक हो के हम कोर्ट में जो है ना चलान कर देते हैं और चलान दे के प्रोसिक्यूशन होती है और ट्रायल शुरू हो जाता है। दो और जो विटनेसेस होते हैं वो ट्रायल में मतलब जाके अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं और इसमें मसला ये है कि इसमें जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं वो कोई आम लोग नहीं है, दो तो उसमें पंजाब पुलिस के एहलकार हैं। तो क्या लगता है कि कितना मुश्किल था इन लोगों को पकड़ना? और बच्चियां तो मैं स्पेसिफिकली उन बच्चियों के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे बहुत खौफ आ रहा है कि किस ट्रॉमे में वो जी रही होंगी। और जब आपके मुहाफिज ही आपके साथ ऐसा करें तो ये तो आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या उन बच्चों पे गुजरी होगी। जी एग्जैक्टली देखिए ना, बेसिकली वही आता है कि इस क्राइम को अगर हम रेड करें दिस इज कंसिडर्ड एज अ ट्रॉमा ना। हाँ जी। अब जो लोग जो फ्रंट पे नहीं आते, जो कंप्लेंट्स नहीं करते हैं, उसकी रीज़न यही होती है कि वही आ जाता है कि सोसाइटी का लोग बात करें। और अगर फॉर एग्जांपल मतलब जो मटेरियल अगर शेयर हो जाए तो बेसिकली री अब्यूजिंग ऑफ मटेरियल वंस इट इज इन द हैंड ऑफ सो मेनी पीपल, और जो शेयर हो जाता है तो उसके बाद वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बड़ा मसला है, वो बड़ा मसला है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कोई भी जुर्म कर देता है, कत्ल से लेके कोई भी जुर्म हो, ख़ासतौर पर ये जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं, तो इनको बाद में ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं होता। हालांकि अमेरिका समेत सब जगह देख लें कि सेक्स ऑफेंडर्स की रजिस्ट्रेशन होती है, उनका हर किसी को पता होता है, जहाँ जॉब्स कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो उनके बारे में इल्म होता है कि इस शख्स ने ये जुर्म किया था, इससे मोहतात रहने की ज़रूरत है और उसके ऊपर नज़र भी रखी जाती है। हमारे यहाँ ऐसा मुमकिनात में से नहीं है, तो फिर कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है इस चीज़ पर?
वो मतलब उसमें देखें कि जो वही है कि मतलब बेसिकली आप देखें कि जब ये सारा मीडिया पे एक दफ़ा जब से शेयर होगी ये सारी चीज़ें एंड पीपल नो दैम कि दीज आर ऑफेंडर्स. अब ज़ैनब अलर्ट बिल में वो बाकायदा रखा है कि वो नेक्स्ट नेशनल जो रजिस्ट्री बनेगी ऑफेंडर्स की ना, एंड गवर्नमेंट इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ नेशनल रजिस्ट्री एट अ नेशनल लेवल कि जिसमें तमाम जो ऑफेंडर्स हैं उनकी डिटेल होगी. हाँ जी सही. एयाज साहब क्विकली पूछना चाहूँगी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा होगी, और साथ में बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं और कहीं ना कहीं से वो ज़्यादती का निशाना बन रहे हैं, ऐसे ही ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी शो किए बगैर क्या कोई दरख्वास्त दे सकते हैं? जी इसमें देखें जो लॉ में ये है कि आप जो माइनर बच्चे हैं उनको आइडेंटिटी उनकी ऑलरेडी जो है ना वो एक्सपोज नहीं होती. उनके जो पेरेंट्स हैं वो कंप्लेंट कर सकते हैं. एंड अब जो हमारा भी क्या होता है कि प्रोसेस होता है कि हम लोग जो विक्टिम्स हैं उनको आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट ही रखते हैं, स्पेशली माइनर्स के ना. तो कंप्लेनेंट जो होते हैं वो गार्डियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी बेस के ऊपर ही प्रोसिक्यूशन सारी होती है. ठीक है ठीक है. तो फिर पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ इतनी इंटरेक्शन रखें, इंटरेक्शन जरूर रखें ताकि वो हर चीज बता सकें आपको, शेयर कर सकें उनके साथ हमारे साथ. एग्जैक्टली इसमें जो सबसे बड़ा जो हमें इशू आ रहा है ना जो सब लोगों के लिए वो यही है कि लोगों को जो सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें और बच्चों का कंटिन्यूसली साइकोलॉजिकल बिहेवियर. जब ऐसा इंसिडेंट होगा बच्चा खाना छोड़ देगा, बच्चा बात करना बच्चा इंटरेक्टिव नहीं होगा. तो सो यू नीड टू सिट विद देम और उसने बात करें कि इशू क्या है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इशू कोई ना कोई ऐसा हो जाए. बिल्कुल. और साथ में बहुत जरूरी है कि जब आपका बच्चा किसी फैमिली के किसी एक फर्द से बहुत अनकंफर्टेबल फील करे, आपकी बेटियां, आपके छोटे बेटे, तो प्लीज जरा बच्चे की बात जरूर सुने. बहुत शुक्रिया जी. एयाज खान हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे. और बड़ी अच्छी बात की है. देखें साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट भी होता है, और ज़ाहिर है कि पता चलाना खाना नहीं खा रहा, किसी तरीके से आइसोलेटेड खुद को रख रहा है, या उसका बिहेवियर पैटर्न्स में थोड़ा सा चेंज आए, ये बड़ा ज़रूरी है नज़र रखना. और दूसरा ये कि ये सेक्स ऑफेंडर्स की जो रजिस्ट्रेशन है मुल्क में ये होनी चाहिए, बड़ी जल्दी बन जानी चाहिए, ताकि नहीं नेम एंड शेम के साथ पता होना चाहिए कि ये शख्स क्या जुर्म का इर्तिकाब कर सका है, वरना 2 साल बाद छूट जाए तो फिर से दोबारा वही सिलसिला शुरू. छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं. जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और उड़ने का शौक वैसे किस को नहीं होता, तो सत्ती साहब को भी उड़ने का बहुत शौक है. चीलों, कौवों, कबूतरों के अलावा मुझे भी शौक है. कभी कभी तो वैसे बैठे बैठे परवाज ले लेते हैं, लेकिन हाँ आप सच में उड़ सकते हैं पैराग्लाइडिंग के थ्रू. और ये तो गए भी थे अपना शौक पूरा करने के लिए. क्या किया आपके साथ शेयर करते हैं. इतना मूड बना ही लिया था, टेम्पो बना लिया था उड़ने का, तो उसके बाद ऐसे ही बाइक पे भी बैठ जाते, उड़ते हुए जाते, बाइक पे बैठे, मतलब आगे कोई और चला रहा होता. इसी तरह की एक तैयारी की फुटेज आई थी जो कि जमीन पे चलता है लेकिन उड़ते हुए दिखाई देता है. इतना अच्छा लगता है. मुझे लगा उड़ेंगे, मतलब जहाजों का तज़किरा कर रहा था मैं खुद, मुझे पीछे से आवाज आई थी कि जहाज वो जहाज लग रहे थे. हाँ, लेकिन मैं अपने होशो हवास में नजर आ रहा था. नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी कि लाहौर में जहाज को कुछ और भी कहते हैं. बहुत मुश्किल, मतलब इट्स नॉट दैट इजी. ग्राउंड हैंडलिंग. डिड यू फील इट ऑन द कोर? जैसे वो इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं यू हैव टू गो डाउन लाइक दिस. तो जिम चले जाते हैं अगर उड़ना नहीं था तो उसके बाद गया था. अच्छा हाँ, बस पे ठीक है. उसके बाद गया था. अच्छा, तो नेक्स्ट फेज भी इंशाल्लाह इसका करेंगे, ताकि आपको दिखाएंगे कि इट्स नॉट दैट इजी. आपको प्रॉपर तरबियत की जरूरत होती है, उसके बाद आप ग्लाइड कर सकते हैं, और मोटराइज्ड ग्लाइडिंग समेत बहुत सी चीजें होती हैं. चलिए जी आगे चलते हैं. आगे चलते हैं जी. और आपको याद होगा एक बहुत ही प्यारे बच्चे की एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि कराची में वाटर पंप के बाहर समोसे फरोख्त कर रहा था. और उसके बाद जब वीडियो वायरल हुई तो उसके आसपास के जो स्कूल से उन्होंने इनको अप्रोच भी किया. स्पेसिफिकली अभी वो स्कूल में तालीम भी हासिल कर रहा है. ना सिर्फ ये खुद बल्कि इसके भाई भी उसी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. हमें लग रहा था क्योंकि अब चीज़ें बेहतर हो गई है तो शायद अब वो दोबारा से हम उनको नहीं देखेंगे समोसे बेचते हुए, लेकिन अभी भी वो वैसे ही वहीं पर एक मखसूस टाइम है वहाँ पे समोसे बेच रहे होते हैं, और एक तरीके से अभी भी अपने वालिद साहब का हाथ बटा रहे हैं. तो हमारे साथ जाहिद में मौजूद हैं. जाहिद, ये मुझे बताएं कि सबसे पहले बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह क्या शेप पहनी है. मुझे बताना कहाँ से लिए, ये जाके मैंने भी खरीदी है. पोल्का डॉट्स वाली, दिस कलर इज माय फेवरेट. राइट, सदर से चलेंगे दोनों भाई साथ. अब मुझे ये बताओ कि ये जो है, हम तो सोच रहे थे कि भाई स्कूल में सब कुछ अरेंज हो गया, उसके बाद समोसे बेचने का सिलसिला खत्म हो जाएगा. ये तो अभी तक जारी है. स्कूल में पढ़ता हूँ और ट्यूशन भी पढ़ता हूँ, मदरसे भी पढ़ता हूँ. समोसे बेचने की वजह है कि उससे थोड़ा बहुत घर का जो खर्चा पहले नहीं निकलता है, अब समोसे वजह से निकल जाता है. सही, ठीक है. अब तो मुझे बताओ बात, तो तुम तो इतने मशहूर हो गए हो, और मैं भी अगर तुम मेरे घर के पास तुम समोसे बेचो, मैं तो तुम्हारे से तस्वीर खींचने के तुमसे समोसे लेने के लिए आऊँ, तो लोग आते तो होंगे, बताओ. बहुत लोग आते हैं. आते हैं, तस्वीर खींचने भी आते हैं और समोसे लेने भी आते हैं. समोसे के रेट बढ़ा दिए क्या? जी, समोसे के रेट बढ़ा दिए.
हाँ 5 पे बढ़ा दिए। 5 पे बढ़ा दिए। अच्छा बच्चे कौन सा टाइम होता है जिसमें आप जाके समोसे बेचते हो? मैं जो 5 बजे 6 बजे जाता हूँ और वहाँ से मेरे जो एंड होता है टाइम आने का वो आता है 8 बजे। तो मेरा बच्चा, आपको ये नहीं होता कि अब तो माशाल्लाह से अब आपकी स्कूल की फीस भी हो रही है, अब आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दो, आप ना ऐसे बाहर जाओ समोसे बेचो, या फिर अब आपको फ़ख्र महसूस होता है कि नहीं मुझे अच्छा मैं बहुत काम कर फ़ख्र रहा हूँ? महसूस होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी अच्छा। और स्कूल के बच्चे तो तंग नहीं करते, जैसे आदत होती है कि देखो सब ये दोस्त है मेरे, कोई तंग नहीं करता। अच्छा, सब दोस्त मेरे कोई गंद नहीं करता। हाँ, कोई ये तंग देख नहीं ले, कोई तंग नहीं करता। अच्छा, जैसे आपके अम्मी अबू जो हैं वो क्या कहते हैं? उन्होंने आपको कहा नहीं बेटा अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो मत तुम करो, क्योंकि तीनों भाई माशाल्लाह से आपके सेम स्कूल में जा रहे, स्कूल वालों का भी शुक्रिया कि मुझे बता रहे थे कि किसी भी किस्म की इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको बुक्स वगैरह स्कूल से हर चीज़ मिलती है। मेरे भाई जो हैं वो अलग अलग कैंपस में पढ़ते हैं, टोटल 4 कैंपस है और मैं कैंपस 3 में पढ़ता हूँ, मेरे भाई कैंपस 1 में पढ़ते हैं। एक जो है सबसे बड़ा वाला वो है KG 2 में 1 में, और जो दूसरा वाला वो है KG 2 में। और आप एक क्लास 6 में? मैं क्लास 6 में। ओके 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 ओके। अच्छा, क्या सोचा तुमने आगे क्या करना? तुमने बड़े होकर सोचा कि मैं कोई रेस्टोरेंट खोलूंगा, कि मैं भी इसे समोसे बेचता तो मैं आगे जाकर बड़ा कमाल, क्योंकि रेस्टोरेंट सारे भी तो इतना पैसा बनाते हैं बच्चे। जी इंशाल्लाह, अब अल्लाह जानते कि क्या होगा आगे जाके, और मेरा तो छोटी मोटी भी है, सोचूंगा। सोचे, लेकिन वैसे क्या सोचते हो कि आगे क्या करना है बेटा आपने? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या सोचते हो? इंजीनियर थोड़ा बहुत। इंजीनियर बनना है, उधर जाके। ओके। अच्छा, अब ये बताओ कि वहाँ पर ये जो टाइम होता है आजकल, इसको पढ़ाई आसान नहीं है। हम देखते हैं कि स्कूल में एक लंबा टाइम, फिर इतना भारी बैग उठा के जाना, फिर उसके बाद ट्यूशन्स वगैरह बच्चे जाते हैं, फिर थक भी जाते हैं, तो ये थकन होती है रोज़ाना, क्योंकि ये समोसे वाली एक्टिविटी भी साथ चल रही है? कभी कभी थकान हो जाती है, बाकी कभी कभी नहीं होती, फ्रेश मूड होता है। अच्छा। तो खुशी खुशी जाता हूँ। और अगर खुद ना जाओ समोसों के लिए तो फिर कौन जाता है? मेरा कभी कभी छोटा भाई जाता है तो मैं उसके पीछे चला जाता हूँ। ओके। अच्छा, छोटा भाई साथ जाता है? जी। तो आप दोनों, एक तो वो तो आप इतने प्यारे हो, तो आपसे भी ज्यादा छोटा है, आपसे भी ज्यादा प्यारा होगा, तो लोग तो आपकी क्यूटनेस की वजह से समोसे ले लेते होंगे। जी। आसपास के लोग वाले कहते हैं हमारे समोसे नहीं बिकते, ये जाहिद हमारा सारा माल ले जाता है, ऐसा कुछ होता है? लोग जलते तो होंगे जाहिद, है ना? क्या बात है जी। तो हमारे साथ बड़े क्यूट जाहिद मौजूद है। तो जाहिद, मुझे बताओ बेटा, आप ना लोगों के लिए बहुत प्यारी एग्जाम्पल हो कि वो लोग जो कि शर्माते हैं कि नहीं हमने मेहनत नहीं करनी, तो आपने इतनी छोटी सी उम्र में लोगों के लिए कितनी बड़ी एग्जाम्पल सेट कर दी। तो क्या कहना चाहोगे लोगों को? मैं तो कहना चाहूँगा कि सब लोग मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। हाँ। मेहनत में अजमत है जी, मेहनत और में वो जो अजमत है। अब्बा की स्टेशनरी की दुकान है वो ठीक चल रही है आपके? हाँ जी, अलहमदुलिल्लाह सही चल रही है। वो सही चल रही है, ओके। तो अब्बू ने नहीं कहा कि बस अब चलो तुम्हारे स्कूल की तीनों भाइयों की फीस मैनेज हो रही है, तब छोड़ो उसको और आ जाओ? नहीं, अब्बू का जो है, अब्बू की जो स्टेशनरी की दुकान है, जैसे आपको पता है लॉकडाउन लग गया था, हाँ। पढ़ाई बिल्कुल रुक गई थी सब कुछ। जी जी जी। तो उस दौरान तो नहीं चला था अब्बू का दुकान, काफ़ी थोड़ा नुकसान हो गया था, और अभी इंशाल्लाह सही चल रही है, अच्छी चल रही है। अच्छा, मुझे बताओ, इतनी प्यारी, जल्दी से बता दो, जो वॉच है ये खुद ली है, अपनी कमाई के पैसे से लिए मेरे बच्चे? ये बताओ। ये अब्बू ने दी है। अब्बू ने दी है, वरना मैं बच्चों से कहती देखो इसकी तरफ कि अपनी कमाई से अभी से बच्चा चीजें ले रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही प्यारा जाहिद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद था, और वक्त हो गया इजाजत देने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही, आबाद रही, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।